हेलो गाइस, वेलकम टू द मोस्ट कंसिस्टेंट पॉडकास्ट एवर, पॉडकास्ट विद प्रणित। आज के जो हमारे गेस्ट है बहुत स्पेशल गेस्ट है। ही इज अ वेल नोन पर्सनालिटी इन दिस सिटी। ही इज अ कंटेम्प्रेरी डांसर, ही इज अ वेरी गुड जैज डांसर, ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। और अगर आपको ये जगह पता है तो ही इज द डायरेक्टर ऑफ द मूवमेंट हब। द एपिसोड विद कुणाल संतानी स्टार्ट्स इन 3, 2, 1। हेलो हेलो हेलो। क्या हाल कुणाल, कैसे हो? बस जो सेम कल रात को थे हम लोग एक्चुअली इधर ही थे कल रात थिंग को। हैज चेंज बिटवीन 11:30 and 8:30 क्रेजी क्रेजी। ये सर थोड़ा सा प्लीज टेक अस टू दिस स्पेस, टेक अस टू दिस द व्हाट वी हैव रिटन हियर, वेलकम टू द हब। यार तो बेसिकली दिस इज द मूवमेंट हब स्टूडियो. You know how this came about because you are part of the movement hub. But जब भी मैं लाइक डांस के बारे में सोचता था, whenever I had started, I always, not always, but at some point in my journey I realized that I am made for more, and that more was always a question. I didn't know what that more means. तो थोड़ा टाइम बाद I realized that I am not just built to create and to showcase and perform, but I am built to be able to build opportunities for other people as well. So when I figured this out, मुझे हमेशा से ऐसा था यार कि we'll build a community. So we first started the movement hub. Yeah. You know, it was a community. We were still teaching out of community. Yeah. And yeah, it just didn't feel fulfilling here. After a point, it felt like there was still no place for people to come together and actually feel like, you know, हम इसको अपना कह सकते हैं, and we can actually creatively push our boundaries. We can spend time in the space. And I also felt like the team was not getting together enough, and there were a lot of problems that I felt, not just us but other dancers also facing. You know, good flooring, just a vibrant, comfortable space to hang out together. Yeah. So yeah, I basically, after a lot of thought, I've always wanted to do it. Almost 2 साल हो गया कि मैं सोच रहा हूँ, 1 साल हो गया कि मैं ढूंढ रहा हूँ, and then I think finally it just like happened that I found this space, and the studio has great lighting for me, which is very important. Yeah. कि natural light हो तो मुझे बहुत energized feel होता है, and only when I feel that energy can I share that energy. So yeah, this is the movement hub. We say home is where the heart is where the hub is. We're all heart here. It's all you know this ki it's all emotion first. Yeah. How you feeling is very important to me, and not just how I'm feeling, but how anybody who walks into the space is feeling. And in the 2 months of existence already, I'm very happy that जो भी आता है वो explain नहीं कर पाता है, but बोलता है यार कि बहुत अच्छा feel होता है. And I think वो हमने कैसे किया है, I don't know. It's probably the energy of the people who started it. But I'm very happy with where we're at. यस यस डेफिनेटली। तो 1-2 साल पहले यू हैव थॉट अबाउट कि एक स्पेस होना चाहिए। उससे पहले यू हैव नेवर थॉट कि खुद का स्टूडियो होगा या कुछ? So यार, I am somebody who works with this system of backtracking. तो मेरा जो long term goal है, 10-year goal, I first wrote that down. So I always, when I went to study abroad, तो there were a lot of obstacles for me. Visa, finding the right school. खैर मैं तो गया था जब ज़्यादा लोग जा भी नहीं रहते हैं, तो there was lack of knowledge also कि कैसे ढूंढे, which schools to apply to, how to apply, all of those things. So when I had to finish my education prematurely and I came back, no, there was a day when I was coming back and I was sitting and I just thought that my only instinctive thought was कि अगर कोई और कुणाल बना है जो मेरे जितना पैशनेट, डेडिकेटेड, हार्डवर्किंग हो, जो मुझे लगता है मैं हूँ, मुझे उसके लिए दुनिया खड़ी करनी है. And because I realized the importance of education and education system back then, because training यहाँ पे हो रही है बॉम्बे में भी, but education system for dance is missing, and I feel like leaving the country gave me that. तो मेरा 10 year का गोल ये था कि मुझे 10 years में education system build करना है. अच्छा, अगर अच्छा education system build करना है तो education has to be, there has to be a price put to it, correct? आप अच्छे teachers लेके आओगे, एक infrastructure बनाओगे, flooring करोगे, और यहाँ पे people are not comfortable paying that much to learn. So I first thought that we need to create opportunities within dance, so that when I tell people, hey, train, I can also give them a reason saying why.
Yeah, yeah. You can get out and do what you want. Now opportunities within contemporary is limited, jazz is limited, hip hop is limited, सब में limited है, but साथ में बहुत है. You know, there are commercial shows, there's classes, there's teaching, there is weddings, sangeets, you know, sangeet entries is like different. There is you creating your own productions, there's artistic work that comes through. तो पहले मैंने सोचा कि let's try and create work for everyone, you know. So then I realized that okay, तो ये वर्क क्रिएट करने के लिए पहले मुझे लोग चाहिए रहेंगे जो अलग अलग फील्ड्स से काम करते हैं, ताकि मैं उनका पर्सपेक्टिव ले पाऊँ, बिकॉज आई ओनली एज मच एज आई नो आई एम लिमिटेड. So I thought, let's get more people who can think more, who want to do more for the community. Yes. Because in the long run, it's important that we try and make dance succeed. Because if dance succeed, Yeah. then byproduct dancers succeed. Yes. So that's my approach. तो मेरा डांस का सक्सेशन की तरफ का ड्रीम था. तो उसमें धीरे धीरे मैंने बैक ट्रैक, आई रियलाइज दैट ओके 5 साल में मुझे बहुत अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी पड़ेगी. तो मुझे 3 साल में एक स्टूडियो चाहिए रहेगा. तो मुझे 2 साल में एक टीम चाहिए रहेगी. तो मुझे 1 साल में ये कंपनी खोल के लोगों को अप्रोच करना पड़ेगा. तो इट गिव मी अ वेरी क्लियर बैकलाइन, यू नो, एंड वी आर समवेयर इन द मिडल ऑफ द जर्नी राइट नाउ. बढ़िया, ये दिस इज वेरी गुड अप्रोच कि पहले गोल लिखो, फिर उसको बैक ट्रैक करो एंड देन यू नो कि अच्छा मुझे चाहिए क्या बेसिकली. या तो आई थिंक वही है कि मतलब वो लॉन्ग टर्म गोल्स है, और फिर शॉर्ट टर्म ऑन अ डेली कि यू नो आपको अपने डांस में क्या काम करना है, फिटनेस पे क्या काम करना है, अप्रोच में क्या काम करना है. ऑल ऑफ दोस थिंग्स आर लाइक दे आर साइड बाय साइड, लाइक ऐसे ऐसे चलते हैं. बट वो लॉन्ग टर्म गोल ना, वेन एवर यू गेट लॉस्ट, बिकॉज एज एन आर्टिस्ट इट्स समटाइम्स वेरी पॉसिबल, यू नो, यू गेट सो देयर आर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग ना, कि आप इधर खो जाते हो उधर खो जाते हो. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गो बैक एंड से अरे आगे क्या करना है, यू नो, और फिर आज के गोल्स भी है, फिर आगे के भी है. तो दे काइंड ऑफ वर्क साइड बाय साइड. या वो ये चीज़ मैंने भी नोटिस की है कि डेली का चल रहा है अपना गोल, लेकिन जो बिगर गोल है वो कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि अरे शिट वो खो जाता है. या यू टॉक्ड अबाउट कि ट्रेनिंग चल रही है मुंबई में या फिर कोई भी सिटी में इस कंट्री में, लेकिन एजुकेशन सिस्टम नहीं है. हाउ डू यू लाइक डिफरेंशिएट दोज थिंग्स? I'm going to try and figure this out. So I would change my statement a little. I'll say physical training चल रही है. Okay. बहुत. So what we have understood about culture is that we have understood that बहुत मेहनत लगेगी, ये हमको समझ में आ गया है. और हम देखते हैं एंड गोल, तो जो वीडियोस हम देखते हैं उनको हमको चेज करने में सिर्फ ऐसा लगता है कि फिजिकलिटी बिल्ड करनी है. तो जब आप एक डांसर को देखते हो ऑनलाइन, तो कोई भी हो, जैज हो, कंटेम्प्रेरी हो, कैसा भी हो, बैले हो, हिप हॉप हो, कोई भी हो, you want to try and achieve that. But we don't understand that there is a lot of work that goes behind the science of the movement. There's a lot of work that goes behind the longevity of the movement. कि जो बंदा कर रहा है वो 2000 में भी कर रहा है, 2025 में भी कर रहा है. तो जब आप मेहनत कर रहे हो, आप ऐसा मेहनत कर रहे हो कि आप आज कर पाओ कि आप 25 साल तक कर पाओ. तो do you understand the history of the style? Do you understand how to analyze performances? Do you understand what performances are happening? Have you been exposed to all that is happening in the world of dance? So education system, I feel like what I learned at least, and I was very fortunate to go to an amazing school called the Northern School of Contemporary Dance, and they are the most open-minded contemporary dance school in the world. They're amazing. And वहाँ पे मुझे समझ, like we had this time where we asked for more training. We said हमें और physical training दो. तो हमारी जो ईयर लिएजॉन थी, जो ईयर हेड थी, वो बैठी. शी लाइक कम 60 of you come sit down, and she said we have scientifically researched that you don't need more than 2 technique classes a day, and if you'll be doing more than 2 technique classes you'll be hampering your body. So we had an independent work class where you can go into the studio to create, to move, to work on what you've learned, anything. We had another session which was body mind centering, body mind learning. We had another session where we learned how to write essays and write proposals. You know, because in the professional world of dance, you can't just sit and say, I'm a good dancer, watch me. You have to know how to reach out to people. You have to know what is happening in the world, you know. So, education system से मेरा ये, like, बोलने का मतलब है कि they taught you how to be a professional dancer, what it takes to train your brain and not just your body, and then how your body is a part of it. Because काफी लोग जब enter करते हैं ना स्टूडियो में, आप नोटिस करोगे एज अ टीचर ऑल्सो, कि some people have a natural knack for certain things.
कोई नेचुरली फ्लेक्सिबल होगा, कोई नेचुरली स्लाइटली रिजिड बॉडी होगी, कोई नेचुरली फुटवर्क में बेटर होगा, किसी का अपर बॉडी ज्यादा मूव होता होगा. यस नो? यस. So in that case, how do you make not it equal, but how do you make everybody realize that ये आप सब कर सकते हो? So that's what my school did to me. It made me realize that okay, this is your body, but if you use your brain in this way, you can alter things to make it work for you. You know, this is how this dancer did it 80 years back. He was not the best in terms of bodily facility, but उसका mind ऐसे चलता था, तो उसने ये add किया value. So I realized even through my study कि डांस कितना वैल्यू ऐड कर सकता है दुनिया को, हिस्ट्री को, कल्चर को. तो ये सारी चीजें आई डोंट थिंक ट्रेनिंग में हो रही है. अभी यहाँ पे कैसा हो रहा है कि आई सी अ लॉट ऑफ गुड टीचर्स शेयर अ लॉट ऑफ फिजिकल नॉलेज कि लेट्स पुश योर बॉडीज, लेट्स ओपन योर बॉडीज, लेट्स यू नो all the physical stuff basically. So I feel like training has to be holistic. There is a lot of mental work, there is a lot of research and study, there is a lot of learning in terms of understanding how to apply for things, how to reach out to people, how to network and communicate, because that's a large part of this career. तो मेरे ये I think difference majorly notice किया मैंने. Your school seemed very fun, मतलब. It was very fun. So my school, when I went first, I thought कि मेरे से एक certain expectation होगी, you know, कि मुझे flexibility पे काम करना है, मुझे you know kicks, turns, jumps ही करने हैं, तभी मैं qualify होऊंगा. तो मैं हो तो गया, qualify हो गया, audition दे दी. But when I went there, I realized that मेरे बाजू में there was a popper who was in a ballet class. There was an Afro dancer who was in a ballet class. और वो सब 9 to 5 जैसे हम jobs करते हैं वैसे 9 to 5 स्कूल करते थे, 6 बजे साइफर. Okay. You know, तो या 6 बजे किसी के घर में, literally in this small space, 8 dancers used to dance. And when I went from here ना, मेरा हमेशा dilemma यही था कि यार I love movement in general so much. I do so many things. I want to learn contemporary to learn about my body and to learn about what I can do with my movement. But यार I'll miss the rest. But fortunately, my school didn't make me feel that. वो बहुत open-minded school था. And it allowed me to realize the beauty of movement with intention. That's it. और वो कोई भी हो, कैसा भी movement हो, मुझे movement से प्यार होने लग गया था. I keep telling people that before this school ना, I used to hate a good dancer. मतलब मैंने good dancer को देख लिया ना, मैं ऐसा लगता है shit यार, ये मैं मेहनत करना है. बट ये स्कूल के बाद ना मुझे प्यार हो गया यार. मैं कोई भी डांसर को देखता ना, आई जस्ट गो अप एंड आई लाइक, डूड यू आर सो गुड मैन. लाइक आई लव अप्रिशिएटिंग डांसर्स नाउ बिकॉज इट्स नॉट कंपेटिटिव एनीमोर. इट्स टू रियलाइज दैट इन दैट मोमेंट ही इज एबल टू गिव इट हिज ऑल एंड कम्युनिकेट समथिंग फॉर मी. And I'm also able to do it in a very different way. That doesn't mean I have to not appreciate someone else. तो ये स्कूल ने मेरा, I'm telling you, the reason the Movement Hub exists, and it's called the Movement Hub, is all Northern School exposure. Just that. वो स्कूल से ही मुझे इतना just it made me realize that why are you segregating? कौन सा स्टाइल क्या? How can you tell that this style is better, that style is worse? Better और worse का क्या कॉन्सेप्ट है ना? Like क्या मतलब? It's like saying कि आपके पीछे जो येलो है वो आपके रेड से बेटर है. मैं कैसे? How can I say? Doesn't make sense. वो ग्रीन इतना अच्छा नहीं है, क्यों? तो then I started to view dance like that, like how you see colors. Everyone has a preference, and that's okay. Which also made me judge myself lesser, because I'm like, if somebody doesn't like the way I move, it's fine. It's okay. I worked hard enough to build my skill and my training, which I am confident of. But when I want to move and create now, it's a journey for me. So I will like somebody, they might not like somebody else. ठीक है. बहुत सही यार, मतलब बहुत अच्छा अप्रोच है, काफ़ी पॉजिटिव है. कम्युनिटी बिल्डिंग वाला थोड़ा अप्रोच है कि आपको भी फील होता होगा जब आप क्लास सिखाते हो. मैं कभी भी like I only help you sometimes in terms of कि क्या better कर सकते हैं in terms of teaching, but I'll never come and tell you कि dance this way, dance that way, because I appreciate everybody in the studio, and if I didn't appreciate it ना, I wouldn't be able to start the studio. वो फेक हो जाता. और फिर जो वो सेड ना कि स्टार्टिंग में कि वो जो एनर्जी फील होता है लोगों को, पता नहीं कैसे हो रहा है. आई थिंक ये छोटी छोटी चीजें हैं जो इंटरनली वी हैव ओपनड आवर ब्रेन्स अप सो मच एंड आवर हार्ट्स आउट सो मच टू पीपल दैट dancers also feel very comfortable sharing what they want to share. तो ये नदन स्कूल ऑफ कंटेम्प्रेरी आप कब गए? Was it the right name? Northern School of Contemporary Dance. Yes. I started applying अभी तो 9 साल पहले, but
Started applying in 2016 Okay. and 2017 I went. जाने का भी 22, 23, something like that. 22. I celebrated my 23rd birthday in England. थोड़ा लेट नहीं लगा कि थोड़ा लेट जा रहा हूँ? बहुत लेट था. बट मैंने डांसिंग ही शुरू की थी 18 पे, लाइक 17-18 पे. तो मेरे लिए ऐसा था कि मैंने 4 साल में एक स्कूल का ऑडिशन क्रैक करा. मैंने एक नहीं, जहाँ पे भी अप्लाई किया आई क्रैक्ड इट एट दैट पॉइंट. तो मेरे लिए ऑल्सो देयर वाज अ सेंस ऑफ प्राइड दैट आई गॉट इन. बट हाँ, ये जो लेट वाला फीलिंग है वो मुझे ऐसा तभी लगता था कि शेट, लाइक बाकी डांसर्स तो मतलब करियर खत्म कर चुके होंगे 22 पे कि मैं क्या कर रहा हूँ, व्हाई एम आई स्टार्टिंग दिस. बट आई डोंट नो यार, तभी आई विल टेल यू व्हाट हैड हैपेंड. तो FSPA करके एक स्कूल खुला था बॉम्बे में, एंड दे वर ट्राइंग टू सेट अप अ प्रोफेशनल सिस्टम इन बॉम्बे, विच लाइक यू नो इज हार्ड. तो तभी ना दे स्टार्टेड अ प्री प्रोफेशनल प्रोग्राम. पहले कि एक छोटा पार्ट टाइम प्रोग्राम करते हैं. उसमें आई वाज जैज फैकल्टी ऑल्सो थ्रू अ कंपनी आई यूज्ड टू वर्क फॉर. तो वो कंपनी के थ्रू मैं सिखाता था. बट माई डील वॉज कि आई ऑल्सो वॉन्ट टू अटेंड ऑल क्लासेस. तो तभी आई गॉट इंट्रोड्यूस टू अ टीचर नेम्ड अवंतिका बेल. और मेरे लिए ना कंटेम्प्रेरी वाज ऑल अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी, किक्स, जंप्स एंड यू नो दीज बिग मूवमेंट्स. एंड देन शी केम इनटू क्लास एंड मेड अस डू लाइक बेसिक स्विंग्स, बॉडी एंड. और मैं गया, मैं ये क्या हो रहा है यार क्लास में, मैं समझ में नहीं आ रहा है. दिस इज नॉट कंटेम्प्रेरी. आई थॉट दैट मुझे बड़ा पता है. एंड देन शी यूज्ड टू टीच अस सुपर स्लोली हाउ टू गेट इनटू द फ्लोर, हाउ टू गेट आउट ऑफ द फ्लोर. और मुझे सब ना स्पीड और लाइक एथलेटिसिज्म दिखाना था तभी. एंड शी रियली चेंज माई परसेप्शन एंड शी अलाउड मी टू गेट एक्सपोज टू अ डिफरेंट साइड ऑफ कंटेम्प्रेरी डांस. तो तभी मैंने सोचा कि यार कुछ तो हो रहा है मेरे बॉडी में जो बहुत अलग है. और 4 साल बाद मैंने कुछ अलग एक्सपीरियंस किया था. 4 साल आई वॉज डूइंग द सेम थिंग एवरी डे, नो चेंजेस, 18 to 22. And when I say same thing, I think one little regret of mine, which is why I'm a little freer with my team now, is that I didn't live my teenage years much. जो 18 to 22 का जो post college या degree college patch, you know, I didn't live it only. Because मैं ये कर रहा था full time. मुझे वही था focus कि late start हो गया, like you said, late start, अभी late start, अभी. I started teaching at 18. You know, फट हो गया. It's just everything I did quickly. बट व्हेन आई स्टार्टेड फाइंड दिस अजीब सा मूवमेंट ना, कुछ बॉडी में कुछ हो रहा था अलग. तो मैंने बोला यार ये हो रहा है बट समझ में नहीं आ रहा कि इसको और बाहर कैसे लेके आऊं. तो मैंने ये बात की अवंतिका से कि मुझे कैसे समझ में नहीं आ रहा है कि कुछ तो हो रहा है. एक लैंग्वेज निकल रहा है जो मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या है, और मैं ऐसे मूव नहीं करता हूँ बट मैं करना चाहता हूँ. तो शी सेड आई थिंक यू नीड टू लीव नाउ, लाइक आई थिंक यू नीड समथिंग फ्रेश. और तभी एक कंपनी आई थी, टू फेस डांस कंपनी करके, एंड दे टुक अ वर्कशॉप देयर. इंग्लैंड से कंपनी थी. और मैं उनके वर्कशॉप में ना, आई वाज लाइक, मैं बह गया. आई जस्ट गॉट कंफर्टेबल. इट शुड हैव बीन चैलेंजिंग बिकॉज आई हैड नेवर डन दैट, बट इट जस्ट फेल्ट लाइक आई वाज होम. एंड आई हैड नेवर एक्सपीरियंस दैट बिफोर कि यार इतना नेचुरल कैसे फील हो रहा है. आई स्पोक टू देम, आई रिसर्च देयर पेजेस, देन आई फाउंड द स्कूल. तो yeah, I mean that was my journey of going there, and I knew that I didn't have much time. तो मैं कभी भी जब भी गया था ना, मेरा इंटेंशन ये नहीं था कि 3 साल के लिए जाना है, डिग्री कंप्लीट करना है. I didn't finish my degree by the way. 3 साल का डिग्री था? 3 साल का डिग्री था. I did 1 year and a couple of months. Which we can come to soon, but anyway, for now, my intention was never to finish the degree. When I was leaving, वहाँ जाने के बाद मुझे ऐसा लगा यार I want to be here. In terms of schooling. So yeah, I think वो जो being late to it started off, but like I said, वो इतना open mind था ना उधर सबका, इतना encouraging था. मेरे स्कूल में एक 19-year-old भी था और एक 25-year-old भी था. तो they were just so encouraging towards just finding your own place. And I realized at some point that अब तो मैंने छोड़ दिया कंपनी. अब तो मैं now it's just me, and with myself I have my life now. So now what am I chasing?
यू नो. तो वो रियलाइजेशन भी आया, बट वो आई थिंक जाने के बाद ही आया. दैट होल पैच वाज क्वाइट it was my biggest learning curve in life between the age of 22 and 23 20. So because we have already talked about this, मतलब मेरे को तो हल्का हल्का जर्नी पता है आपका, but please take me with you कि वो क्या था, क्योंकि it's not कि अवंतिका ने बोला आपको जानना है तो आप चले गए. It's not that easy. फाइनेंशियल प्लानिंग चाहिए होती है, वहाँ पे कैसे रहना है, कॉन्टैक्ट चाहिए होते हैं. तो प्लीज़ थोड़ा सा बताना कि हाउ वाज इट. And plus if you can like give advice to people at the same time कि ये ऐसा हुआ, you please ये अवॉइड कर देना या फिर. I'll try. It's a little tough. मैं बात नहीं करता यूके के बारे में ज़्यादा because it was very difficult. I'll go now. आराम से है. Sorry. So when I decided to go, तो पहला चीज़ ये है कि वीज़ा चाहिए, राइट. तो स्कूल्स में अप्लाई करना था. मुझे आधा टर्मिनोलॉजी भी नहीं पता था कि क्या ऑडिशन में देना गया है, बट मेरी बॉडी कर पाती थी. तो आई यूज टू गूगल रिकॉर्ड. I got through the audition. I went there नहीं, I got through the audition. Next stage was कि आपको जब यूके जाना होता है, आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फंड्स दिखाने होते हैं आपके अकाउंट में कि आप पहले तो 3 साल का फीस भर सकते हो, प्लस आपका जो मंथली एक्सपेंस एट 1100 पाउंड्स ऐसा कुछ पर मंथ यू हैव टू शो. ठीक है, कि आपके पास साल भर का पैसा है. तो मेरे से गलती क्या हो गया, आई शोड माई ग्रैंडफादर्स फंड्स बिकॉज हमारे पास तो नहीं थे. तो मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया. तो आई अप्लाइड इन मार्च एंड आई वॉज ट्राइंग टू, माई ग्रैंडफादर हैड लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो भी उनका था. मेरे मॉम और मेरे पास नहीं थे. मेरे पास तो नहीं थे, खैर 20-30 लाख रुपए नहीं थे. माई ईयरली फी वॉज अराउंड 15 lakhs a year. ठीक है, प्लस वहाँ पे रहने का खर्चा. इट्स द यूके. तो व्हेन माई वीज़ा डिडंट कम, आई थॉट कि फिर अप्लाई करेंगे. बट वो अप्लाई करने के लिए जो फंड्स आप ट्रांसफर करते हो उसको फंड्स को 30 दिन अकाउंट में रहना पड़ता है बिफोर यू कैन स्टार्ट द वीजा एप्लीकेशन अगेन. यू हैव टू शो दैट दीज फंड्स हैव बीन हियर फॉर 30 days. नहीं तो आप क्या है कि मनी इधर करके उधर कर सकते हो. सो इट्स डेंजरस फॉर देम. उस दौरान जब मैंने फंड्स ट्रांसफर किए, आई हैड माई थर्ड स्लिप डिस्क. अच्छा. अब वी आर इन द मंथ ऑफ मे और जून. माई स्कूल इज स्टार्टिंग इन ऑगस्ट. ओके. आई स्टार्टेड फिजियो. मेरे पास जितने सेविंग्स बचे थे मेरे पर्सनल, मैं 5 दिन जाता था हफ्ते में फिजियो. साथ में साइड में जिम करता था, जस्ट प्योर एक्स्ट्रा फिजियो स्ट्रेंथनिंग की जाना तो है. एट दैट पॉइंट आई डोंट थिंक माई पेरेंट्स अंडरस्टूड मैं क्या कर रहा हूँ. 22 पे तुझे 15 लाख रुपए और खर्च करके डांस सीखना, जबकि तू 4 साल से सिखा रहा है यहाँ पे. इट डजंट मेक सेंस. बिल्कुल. तो मना कर दिया था मुझे. और अब बोला ये दिस इज अ साइन. वीजा नहीं आया, स्लिप डिस्क हो गया, तुझे क्या चाहिए और भगवान से कि नहीं जाना है. मैंने तब बताया भगवान डज नॉट डिसाइड, आई डिसाइड, आई विल गो. मेरा स्कूल स्टार्ट हो गया. मैं बॉम्बे में हूँ. ग्रुप बन गया है, फेसबुक ग्रुप. मैं ऐड हो चुका हूँ, मैं बॉम्बे में हूँ. मैंने ऑनलाइन एक अमाउंट स्टार्टिंग का ट्रांसफर कर दिया. मैं अभी भी बॉम्बे में हूँ. आई हैव नॉट रिकवर्ड. आई हैड 1 month. माय वीजा हैड नॉट कम. But I still went 5 days a week, every day, not knowing the outcome. क्या होने वाला है. मेरा सिर्फ ये था कि मेरा वीजा आ गया तो I should be able to go. Now my mom was very supportive. Even though she was hesitant, she was like कि तेरे को जो करना है, I'm sure you think you know what you're doing. Finally वीजा आया. मैं जब गया स्कूल तब 1 महीना लेट गया था. तो I had gone in September mid. जिस दिन मैं यूके में लैंड हुआ, my cousin lives there. They live in Manchester. My school was in Leeds. तो समझ पुणे बॉम्बे. तो मैं रह रहा था मैनचेस्टर में और मैं रोज बस ले रहा था सुबह ऑलमोस्ट 5 बजे सुबह को लीड्स पहुंचने को. 2 घंटे लगते थे वहां पहुंचने को. मैं बस स्टेशन से उतरता था. इट वाज अ 35-minute वॉक टू स्कूल. आई हैड नेवर डन 0 degrees टेम्परेचर एवर बिफोर. वी वर क्लोजिंग इन विंटर्स आ रहे थे. मेरे पास जैकेट नहीं थी.
ठीक है, तो मैं 2 थर्मल पहन के, एक शर्ट पहन के, एक टी शर्ट पहन के, एक सादा जो बॉम्बर जैकेट, जो बॉम्बे में जैकेट पहन सकते हैं वैसा जैकेट पहन के निकालता था। बिकॉज जैकेट खरीदने में मुझे डर लग रहा था कि साला फंड्स तो है नहीं, मैंने अगर एक 100 पाउंड का जैकेट खरीद लिया तो फिर घर जाना पड़ेगा। मेरा हमेशा यही था कि मैं अगर एक रास्ते पे भी चल रहा हूँ और मैंने पानी खरीदना है ना, यार ये खर्चा हो गया तो घर जाना पड़ेगा, तो मैं कुछ नहीं करता था। तो बट मैंने जिम ज्वाइन की थी 10 पाउंड अ मंथ था, 1000 रुपये महीने का। तो आई सेड ये ठीक है, ये मैं स्टार्टिंग में भर दूंगा, आई विल बी कंसिस्टेंट। तो मेरा सिस्टम ये था कि मैं पहुंच तो गया हूँ, मैं लेट पहुंचा हूँ, स्कूल में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, बट सिस्टम ये था कि कुछ भी करना है, सुबह 5 बजे उठना है। मेरे अंकल बहुत स्वीटली मेरे लिए सैंडविच बनाते थे 4 बजे सुबह, वो उठते थे काम के लिए, ठीक है। वहां से मैं बस लेता था, सबसे सस्ती बस लेता था, तो उसमें हीटिंग नहीं होती थी, ठीक है, तो हवा चल रही है, 0 डिग्रीज है, मैं 2.5 घंटा वैसे ट्रैवल करता था। उतरता था बस से, लीड्स अगर कभी जाओगे तो ऐसा है लीड्स, तो आप पहाड़ चढ़ के उतर रहे हो, पहाड़ चढ़ के 35 मिनट वॉक टू स्कूल, न्यू सिटी, न्यू कंट्री, आई हैड नो आइडिया व्हाट आई वाज डूइंग, वेयर आई वाज गोइंग, मैप्स चल रहा है वो बहुत बड़ी बात है। मैं स्कूल पहुंचता था, स्कूल खत्म करता था 5 बजे, यूज्ड टू वॉक बैक। तभी भूख तो लगती होगी, बीच में खाना नहीं खा रहा हूँ। स्कूल में कैफेटेरिया था, बट मैंने एक ही बार लाइफ में वहाँ पे खाया है, अच्छा, बिकॉज मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था, तो आई यूज्ड टू नॉट ईट एनीथिंग। तो लंच नहीं करता था। तो सुबह के सैंडविच। फिर कभी भूख लग जाती थी 5-5:30 को, तो मेरा एक रूल था, जाते जाते एक ग्रोसरी स्टोर था अल्डी करके, वो एक ही था जो अफोर्डेबल था, तो मैं वहां से एक पॉपकॉर्न का पैकेट खरीदता था, 99p का आता है, अभी भी मेरे कजन जब आते हैं ना तो पॉपकॉर्न लेके आते हैं वो वाला। ओके, और मैंने एक क्लिप खरीद लिया था, तो दैट वाज माय स्नैक्स फॉर अ वीक। एक हफ्ता वही पैकेट चलना है, उससे ज्यादा नहीं खा सकता मैं। तो मैं धीरे धीरे करके क्लिप, धीरे धीरे करके क्लिप, जितना भी भूख लगे धीरे धीरे करके क्लिप। तो 1 pound a week is what I allowed myself. I used to travel back, reach Manchester around 7:38. मैं 8 बजे जिम जाता था, 8 से 9:30 जिम जाता था, वहाँ से घर जाता था, फिर डिनर बनाता था। मेरे को मेरे कजिन्स ने सिखाया कैसे खाना बनाना है, कुछ नहीं आता था मुझे, कपड़े कैसे धोने हैं, कुछ भी नहीं। एंड देन आई यूज्ड टू वेक अप अगेन इन द मॉर्निंग एंड सेम ओल्ड, सेम स्केड्यूल थ्रू मंडे टू मंडे, यू नो, यही स्केड्यूल था। एक पॉइंट पे क्या हो गया कि स्कूल वाज गेटिंग वेरी ओवरवेलमिंग, बिकॉज मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मेरे कोई दोस्त नहीं थे, बिकॉज जो भी दोस्त स्टार्टिंग से बन गए थे वो 1.5 महीने साथ में थे। मैं नया लड़का, डिफरेंट कल्चर, कोई इंडियन नहीं, मैं यूनिवर्सिटी में भी नहीं था, इट वाज अ डांस स्कूल, सो ओनली डांसर्स देयर। मैं कंपेटिटिव था, मुझे रहना भी था, मेरे पास पैसे भी नहीं थे, कोई बोल भी देगा कि चल लेट्स गो ग्रैब अ मील, मैं डर लग रहा है कि मील कर लिया तो घर जाना पड़ेगा, तो मील भी नहीं करता था मैं, चुपचाप चल चल के घर जाता था। बट स्कूल इतना ओवरवेलमिंग हो गया ना कि मुझे लगा कि आई वांट टू कम बैक होम, मेरे से नहीं हो रहा है, दिस इज अ वेरी टफ जर्नी। तो दिसंबर में क्रिसमस के टाइम मैंने मेरी मॉम को रिक्वेस्ट किया कि कम बैक होम, तो मैं आ गया, मैंने वापस नहीं जा रहा हूँ, मेरे से नहीं होगा। कैसे भी बात करके वी केम टू द कंसेंसस कि तू चले जा, बट मैनचेस्टर से लीड्स वी विल ट्राई एंड मूव, कि एटलीस्ट सुबह तुझे थोड़ा सा सोने का टाइम मिल रहा है, 7 बजे उठ सकता है। तो मैं जब आया तो मुझे 322 पाउंड्स में एक रूम मिला था अ मंथ, वो भी क्योंकि एक लड़की इंजर हुई थी एंड शी हैड टू लीव मिड ईयर। ओके, तो मैंने वो रूम ले लिया, वो स्कूल से 2 मिनट दूर था। तो फाइनली आई वाज लाइक आई कैन लिव, यू नो, बट व्हेन आई गॉट दैट आई रियलाइज दैट ये एक एडिशनल एक्सपेंस है, तो जॉब चाहिए रही। तो मैं जॉब ढूंढ रहा था स्टार्टिंग से, तो लंबा प्रोसेस है, आपको एक नेशनल इंश्योरेंस नंबर मिलता है, उसके लिए टाइम लगता है, तो अब पहले 1-2 महीना 3 महीना तो जॉब मिल भी नहीं सकती वहाँ पे। फिर फाइनली एक रेड हॉट बुफे करके एक जगह है जहाँ यहाँ पे ग्लोबल फ्यूजन है ना सेम, तो वहाँ पे एक बुफे टाइप सिचुएशन में मुझे एक वेटरिंग की इंटरव्यू मिली थी। तो तभी ओनर्स दे वर नॉर्थ इंडियन ओनर्स, तो दे वर क्वाइट इंसल्टिंग टू मी, सेइंग तुझे क्यों करना है ये सब, हीरो बन जा, ये क्या फालतू जॉब कर रहा है ये। तो आई डिडंट गेट द जॉब। फिर वहाँ पे मैं एक इंडियन लड़के को मिला जो वेटर था,
आई डिडंट नो हिम, बट वहाँ पे सब भाई भाई हो जाते हैं. Okay. तो ही वाज लाइक भाई जॉब चाहिए. मैंने बोला हाँ. बोलते ठीक है, आई टॉक टू देम. तो देन आई गॉट अ जॉब देयर. और वहाँ पे काफ़ी नास्टी थे वो. तो मेरा वर्क आवर्स था, स्कूल में मैं काम करता, स्कूल 9 to 5 थी. जिस भी दिन मुझे शिफ्ट मिली, बिकॉज वो ज़्यादा शिफ्ट देते भी नहीं थे, बिकॉज इट वॉज अ पार्ट टाइम जॉब, आई कुड डू ओनली 20 आवर्स. तो मंडे टू थर्सडे नहीं करता था मैं, फ्राइडे सैटरडे संडे जॉब करता था. फ्राइडे 5 to 12, सैटरडे फुल डे एंड संडे फुल डे, फिर वापस स्कूल. तो ये जॉब बेसिकली मैं आइसक्रीम सर्व करता था. बट अगर लाइक मतलब मेरे लिए एक बहुत इंसल्टिंग ऑल्सो एंड हम्बलिंग मोमेंट था, जहाँ पे आई रिमेंबर देयर वाज अ किड वाज रनिंग, ही ड्रॉप्ड आइसक्रीम, या उसने कोई ग्रेप पे पैर मार दिया था. तो मैंने रिएक्ट नहीं किया कि ठीक है कोई कर लेगा साफ, बट कोई वाज मी. सो आई रिमेंबर माय बॉस हैड कम टू मी एंड वाज लाइक, अब मैं टीचर हूँ बॉम्बे में, ठीक है, मतलब आई एम एट द टॉप ऑफ माय गेम, तो जरा बाप साफ करेगा ये. तो आई सेड नहीं सर कर लेता हूँ. तो मेरा पहला दिन जो जॉब का था यही था फर्स्ट डे, क्योंकि आई डिडंट रियलाइज. तो मैं बहुत रोया, साइड में जाके मम्मी को फ़ोन किया, मैं कर लूँगा बट बहुत टफ है, मैं कर लूँगा बहुत टफ है, मैं कर लूँगा. हमेशा से ये था कि यार मैं कर लूँगा बट बहुत टफ है. तो मेरी मॉम ने इमीडिएटली बोला छोड़ दे, मैं पैसे भेज दूँगी, मैं कर लूँगी कुछ, यहाँ पे मत करिए सब. तो यार लाइफ इतनी आसान होती तो मैं सीखता गया. तो मैंने कर लिया एंड आई वर्क देयर. आई मेड डिसेंट मनी एंड डिसेंट मतलब 8 pounds an hour मिलते थे. तो हफ्ते का 150-160 पाउंड मिल जाता था, तो महीने का 600 पाउंड मिल जाता था. 300 रेंट, 30 पाउंड का फ़ोन का कुछ आता था, जहाँ पे इंटरनेशनल मिनट्स भी थे क्योंकि घर पे बात करनी थी. और बाकी जो मेरे पास 100-150 बचते थे, उसमें मैं बाकी सब कर लेता था, ग्रोसरीज, फूड. मतलब आप ये किसी को बोलोगे कि आप 150 पाउंड में यूके में महीना निकाल लेते थे, तो वो रिडिक्यूलस स्टूपिड बोलेगा तुम्हें कि पॉसिबल ही नहीं है. तो ये था. और ये करने के बाद भी ना मेरे से सेकंड ईयर नहीं हुआ. मुझे क्या लगा कि मैं पैसे बचा लूँगा और एक और साल कर लूँगा. बट अब ईयर एंड हुआ, मेरी मॉम आई, मेरा एक परफॉर्मेंस था, और फिर कॉन्वर्सेशन था कि हम लोग घर को मॉर्गेज करते हैं, तू कर ले. फिर मैंने बोला नहीं यार नहीं होगा, दिस आई कांट डू. आई एम नॉट रिस्किंग योर सिक्योरिटी फॉर माई हैप्पीनेस. तो देन आई रिफ्यूज्ड. आई सेड नहीं, वापस चलते हैं. तो चलते चलते एक एप्लीकेशन खुल गया था, किबुत्स कंटेम्प्रेरी डांस कंपनी को. अच्छा, किबुत्स वाज द कंपनी आई फर्स्ट वॉच्ड इन बॉम्बे. मेरे टीचर ने मुझे दिखाया था बिफोर आई स्टार्टेड ट्रेनिंग, एंड ही सेड अगर तू इनके साथ नाच लिया ना तो कंसिडर दैट यू हैव मेड इट इन लाइफ. अच्छा. तो मैंने बोला कर लेते हैं अप्लाई, क्या होगा, मना करेंगे ना और क्या. तो हाँ बोल दिया. तो मैंने बोला अब इजराइल जाना पड़ेगा. तो मैं वापस आया एंड आई हैड ऑलरेडी स्टार्टेड टू सफर सम नी पेन, जो मैंने बताया नहीं किसी को भी. इट वाज वेरी बैड, बट जाना था इजराइल, क्योंकि आई वाज लाइक यार अभी तो मैं लास्ट 5 महीने से तो आई जस्ट स्टार्टेड फीलिंग कि मैं इधर रह रहा हूँ, स्कूल कर पा रहा हूँ, ध्यान दे पा रहा हूँ. अब फिर वापस जाके इजराइल का एप्लीकेशन ये सब हुआ, वीज़ा कर दी. इजराइल वाज ओनली 5 months, तो इट वाज अ शॉर्ट कमिटमेंट. तो वापस पैसे जुटाए कैसे भी करके. वहाँ पे मैंने ना आते ही एक वर्कशॉप लिया. अब मैं तेरे को बताता हूँ क्यों मैं मेरे स्टूडेंट्स को उतना वैल्यू करता हूँ. मैं आया हूँ बहुत टाइम बाद. आई ओनली अनाउंस्ड अ वर्कशॉप व्हाइल आई वाज कमिंग, कि वहीं से कि आई एम गोना टेक अ वर्कशॉप. जीपे वीपे का ज़माना भी नहीं था. लोग बैंक ट्रांसफ़र कर करके मेरे आने से पहले 40 लोग ने रजिस्टर कर लिया. ठीक है, 40, जो आज तुझे पता है कि इम्पॉसिबल है. सिर्फ इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स कमाता है. करेक्ट. हमारा काम नहीं है. मुझे तो तभी भी लगा था कि यार जो भी थोड़े स्टूडेंट्स आ जाएंगे 15-20 विल बी गुड. मैं आया, मैंने क्या बोला कि मैं स्टारबक्स में बैठा हूँ, आप 2 दिन आओ, मेरे से मिलो, रजिस्टर करके चले जाओ. क्योंकि वही मीडियम था, कैश या फिर ऑनलाइन. तो पहला जो दिन था उसमें भी क्रॉस 60. ओके. सो आई वाज लाइक ये ना हो पाए.
ये क्लास में फिट नहीं होंगे, हाँ तो मैंने उसी दिन डिवाइड कर लिया, मैंने बोला एक और क्लास सिखा दो। नेक्स्ट डे स्टूडियो को फोन किया, कर दिया। अभी मेरा पहला वर्कशॉप है लाइफ का, मैंने नहीं लिया वर्कशॉप इसके पहले, खुद ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, कोई बुला नहीं रहा है, मैं खुद स्टूडियो बुक करके कर रहा हूँ। 98 people signed up. crazy And when I was able to add value to them now, I realized that whatever I'm doing is working. And I am able to give back so much with so much happiness. कि यार मैं उनको कुछ सिखा पा रहा हूँ जो नया है, जो फ्रेश है, और उनमें दिख रहा है कि वो एक्साइटेड है। In that class, I remember, Pranit, they were struggling so much. मैंने उनको सिर्फ सवाल पूछा. I said, how many of you have not danced in 6 months? 80% of the class raised their hand. And I asked them why. They said, because you left. That's it. They didn't even look to another teacher. They just said, that's it then, whenever Kunal comes back. इतना trust, इतना loyalty, itna, I don't know, togetherness. I was like, dude, like these guys are my end game. Like it's everything for me. So they motivated me to say, Kunal, you got to keep learning more. फिर मैं इजराइल गया, and Israel was nice. It was, I was finally done with the struggles, and I was like, okay, I know that इसके बाद तो पक्का घर जाना है, तो जो भी होगा इधर हो जाएगा, you know. So that was a different journey, but yeah, that is that. आपने advice भी पूछा था ना, क्या advice दे सकता हूँ मैं? Do you want to say something? Sorry. नहीं बोलो बोलो. In terms of advice, I would just tell people, plan your finances well. Only go to a school if you like absolutely see value. Please don't go abroad because आपको लगता है कि आपको बाहर जाना है. मेरे जैसे टीचर्स, मैं बहुत टीचर्स हैं जो like अभी बॉम्बे में currently residing है. For example, आपको like hip hop world में देख लो तो तनुज is very well exposed to the world. ऐसे बहुत डांसर्स है. श्री लक्ष्मी is very well exposed to the world. Flying Machine is very well exposed to the world. Contemporary में मैं, नीरज, सौम्या, हम लोग बहुत खुद ही मेहनत करके बाहर सीख के आए हैं. So we now today, fortunately for the younger generation, we have enough information. But of course, we cannot replace a school. Only go if you find the right school for you. I would recommend that. कि पहले अपना research कर लो. Don't just go because you feel like, oh, it's time and I need to leave the country. Yeah. It's a stupid decision. Secondly, plan your finances well in advance because when the opportunity comes, it's too late to prepare. Yeah. You know, it's उधर तभी ऐसा लगता है कि 2 दिन में कैसे होगा सब. फंड रेजर वाला सिस्टम नहीं था. I don't think मुझे पता था कि ये एग्जिस्ट करता है. I think अभी मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है शिट यार कर लेना चाहिए था ना यार, इतना मेहनती हूँ मैं, इतने स्टूडेंट आ गए थे क्लास में, सपोर्ट तो कर ही देते हैं. बट आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ इट. आई थिंक मे बी वो था, होगा आई एम श्योर. प्लस हमको ऐसा लगता था ना कि खुद का जर्नी है, मेहनत मेहनत घोड़े. वो भी एक सही चीज़ बोली आपने कि आई डोंट नो, मतलब ये थोड़ा इंडियंस का होता है कि भाई हमें ऐसा लगता है कि मेहनत नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा. कुछ नहीं मिलेगा ही नहीं कुछ. हमारे नसीब, वी डोंट डिजर्व एनीथिंग. मजदूर मेंटालिटी, आई कॉल इट मजदूर मेंटालिटी. तो हमको ऐसे भी लगता है. मैं कभी भी ना, तूने देखा होगा क्लास में भी, मैं कभी कोई लोगों को बोल देता हूँ आफ्टर अ फ्यू क्लासेस, हम लाइक नाउ रेस्ट. तो आई एम नॉट सेइंग इट. उनको ऐसा लगता है कि मुझे लगता है कि वो कर नहीं सकते. इट बिकम्स एन ईगो बैटल. मैं नहीं कर सकता, मैं करके दिखा दूं. नहीं करना ना भाई, बॉडी में एक लिमिटेशन है, मुझे दिख रहा है, यू डोंट हैव द स्ट्रेंथ टू डू इट. वर्क ऑन समथिंग एल्स, यू नो. सो बट ये खुद की लर्निंग है. मैं कितना भी बोल दूं, यू हैव टू लर्न इट बाय योरसेल्फ. प्लस डेली जजमेंट भी बहुत है मुझे. मतलब अगर मैं मान लो कि 4 दिन से बढ़िया कर रहा हूँ और आज मेरी बॉडी ने मान लो नहीं किया ना, तो मुझे ऐसा लगता है यार मैं डांसर ही खराब हूँ. मेरा इसमें एक सिंपल रूल है. मैं लाइक कोई मेरे सामने अच्छा करता है या मैं खुद भी अच्छा करता हूँ, आई जस्ट से गुड वर्क एंड आई मूव ऑन. एंड देन इफ आई डू टेरिबली, आई से बैड वर्क एंड आई मूव ऑन. एंड इफ सम स्टूडेंट ऑफ माइन says, you know, today I had a great day, and I say, oh, that's amazing. I just say 364 more. That's all. Consistency is everything. Yeah. And it's just a day. We have to realize that आपका जो day है when you come into dance is affected by so many things. You come in as a full body, right? Yeah. Your organ system, your digestive system, the way you're breathing, you know you have breathing issues, you know. So those things, there is traffic outside. You might be mentally affected by so many things. Relationships, life,
then your body, what have you done the previous day? Have you eaten enough to be able to replenish you for today? Have you slept enough? Sleep is so important. कोई भी performance driven activity में, let's call dance a performance driven activity. You need to consider that you are a holistic human being. Yeah. And identify rather than criticizing and judging, identify कि आज क्यों है ये, और वो एक अच्छा स्टडी बन जाएगा. बिकॉज आप बाद में फिगर आउट करोगे, अच्छा आज भी वही सेम फीलिंग है, ओह ठीक है मुझे ये करना चाहिए. लाइक yesterday for example I realized that I'm going to have today, let's take today for example, I realized that I'm going to have a long day. Usually I start my day with a high like heavy protein meal वगैरह वगैरह and very low on carbs. I know that I need more energy today, hence an addition of carbs. मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, और आज शायद maybe at some point I don't feel great, maybe I'll understand why I'm not feeling great, maybe I'll eat more, maybe I'll eat less. So you have to, like, your body is it's a funny, strange, constantly evolving thing. तो उसमें ये समझना बहुत जरूरी है कि it's not your dance, it's you in some shape, way or form that is not the best today, and that's okay, because if you don't have bad days, how will you know what good days feel like? तो वो है, I feel like judgment मैं तो करता ही नहीं हूँ honestly. I genuinely I don't I don't. और ऐसा बॉडी माइंड को थोड़ा चिल और अच्छा रखने के लिए what do you do? Like I know कि you do physio a lot, या फिर आप जिम जाते हो, some good podcast, maybe books, कुछ रूटीन है आपका, या फिर किसी का रूटीन आपको पसंद है? I definitely think कि reading बहुत important है. Because especially when you don't have a mentor, you learn a lot from books. I read somewhere also that you as an individual are summation of the people you meet and the books you read. That's who you are. So I try and read whenever I get time. खैर last 2 महीने में नहीं हुआ है because of the studio. And एक चीज that is consistent in my routine even if I'm not dancing is strength training. मैं जिम जाता हूँ और मुझे लोग जिम में पूछते हैं यार पूरा दिन डांस करता है तो जिम भी. तो जिम एक जगह है जहाँ पे आई एम नॉट आंसरेबल टू एनीवन. वो एक जगह है जहाँ पे आई कैन स्टिल डू फिजिकल वर्क विदाउट टॉकिंग टू अ सोल, विदाउट एक्सप्लेनिंग. यहाँ पे मैं थोड़ा ज्यादा, मेरी आंखें हमेशा खुली रहती है कि वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, शिट 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 उसकी बॉडी रॉन्ग पोजीशन में है, उसका पैर दुखेगा कुछ. तो आई एम ऑलवेज अवेयर. देयर इट्स ऑल अबाउट मी. तो वो मेरे लिए आई थिंक जिमिंग इज माई मोस्ट प्राइज्ड पोजेशन, ऐसा कि वो मुझे बहुत पसंद है. बाकी ओवर टाइम आई हैव रियलाइज्ड द वैल्यू ऑफ बैलेंस. तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, अगेन खैर लास्ट 2 months में नहीं हुआ, बट बिफोर दैट आई वाज ट्राइंग माय बेस्ट टू गिव सम टाइम टू माय फैमिली, बिकॉज मैं 12 साल से पागलों की तरह भाग रहा हूँ और वो जानते ही नहीं है. उन्होंने सिर्फ सपोर्ट किया है, और वो आज भी मतलब इफ आई जस्ट गो होम एंड से guys I need the room to myself, I need to rest for 15 minutes, कोई चालू कर देगा एसी, कोई कवर कर देगा मुझे, कोई आके खाना रख देगा. It's they are supremely supportive, but a relationship cannot work one way. It's not going to happen. So I'm consciously just making an effort over the last year at least to give my family the importance they deserve. That is one thing that for me has changed in the last year. वेरी नाइस. मेरा भी अपनी फैमिली के साथ बहुत ऐसा अप एंड डाउन रिलेशन. मतलब एक उम्र तक 16-17 तक तो कि खैर पेरेंट्स ही भगवान है. उसके बाद एक टाइम पे दोस्तों से थोड़ा बात करना, तब पता चला यार पेरेंट्स ने कहाँ फकअप किया है, पता चलने लग गया. फिर थोड़ा गुस्सा आने लग गया, फिर थोड़ा हेट रिलेशन बनने लग गया, फिर वो थोड़ा सा क्रॉस हुआ तो बातें शेयर होनी स्टार्ट हो गई. बहुत मतलब मेरी सिस्टर के साथ तो मेरा इतना अच्छा रिलेशन है. आई डोंट इवन रिमेंबर कि 16 से पहले हमने कभी बात भी की होगी बैठ के. Really? या सिर्फ मारते थे और मैगी खाते थे. फिर 17-18 के बाद मतलब बहुत अच्छा हो गया. But अभी मतलब how is it with your parents and everything? बहुत सही. मतलब उनको पता है कि ये केपेबल है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि ये कहीं भटक रहे हैं. मेरी मम्मी को लिटरली ऐसा लगता है. मेरी मम्मी को ऐसा लगता है कि ये बहुत केपेबल है, लेकिन इसको, क्योंकि मम्मी को ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं खुद से इंडिविजुअल डिसीजन भी ले सकता हूँ. उसको लगता है किसी ने इसको भटकाया है कि ये मस्त. क्योंकि मैं मास्टर्स कर रहा था फिजिक्स में, उनको लगा भाई कुछ क्रेजी करेगा. मेरे जो टीचर थे स्कूल वाले, उनको था कि मैं इसरो में जाऊँ, एस्ट्रोफिजिक्स बनूँ. मेरे पापा चाहते थे मैं
रिसर्च साइंटिस्ट बनूँ होमी भाभा में वगैरह सब कुछ, तो वैसी वो थे। और मैंने डांस का बताया नहीं था टिल माई कॉलेज का लास्ट सेमेस्टर। बट यू वर डांसिंग। उससे 3 साल तक मैं ऐसे पार्ट टाइम एक जगह जॉब कर रहा था, ये सारी बेसिक्स फाउंडेशन सीख रहा था। एक स्टूडियो था चंडीगढ़ में, ऊर्जा डांस वर्क्स, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, वहाँ पे जाता था। मुझे अलाउड नहीं है स्कूटी लेके हाईवे पे जाना भी, वहाँ पे मैंने स्कूटी खरीदी है खुद की और घूमा है। हिमाचल बहुत जगह जाता था, झूठ बोलता था। नहीं, मैं स्कूटी पे नहीं, ऐसे घूमने। आई रिमेम्बर दिस वन इंसिडेंट कि मैंने, मेरे टीचर ने बोला कि दिल्ली में एक जैम हो रहा है, तो तब पता नहीं था जैम क्या होता है, कि सब मस्त ऐसे फ्री स्टाइल सारे हिप हॉप डांसर्स आएंगे, एक इंटरनेशनल आर्टिस्ट आएगा, वो सिखाएगा, सब बैटल वैटल होगी। मैं सुन के ही ऐसा हो गया कि ये तो कार्निवल है। तो मैंने पापा को फ़ोन किया, मैं बोला कि दिल्ली में ऐसा एक वर्कशॉप है, मैं जा रहा हूँ। पापा ने सोचा वर्कशॉप, ओके गुड, जाओ ऐसे ऐसे। फिर मैं बोला हाँ इंटरनेशनल डांसर आ रहा है। डांसर डांसर मतलब? बोला हाँ डांस का वर्कशॉप है। तो ऐसा आवाज़ कि देख ले, मतलब सेमेस्टर भी ख़त्म ही होने वाला है, ऐसे ऐसा आवाज़ होने लगे। तो थोड़ा सा मैं दुखी हो गया, बट करना तो था ही, तो मैं चला गया। तो उनको पता था कि ये शायद जाएगा शायद नहीं जाएगा, तो मैं जैम के अंदर था। जैसे इनका कॉल आता था मैं भाग जाता था बाहर, और वो भी जानबूझ के 2-3 बार कॉल कर रहे हैं अच्छा, पता था चेक करने के लिए। मैं दौड़ के जाता था, बोलता हाँ कुछ नहीं, खाना खा लिया, ऐसे वापस आ गया जैम अटेंड। बट दैट वाज माय फर्स्ट इंटरनेशनल एक्सपोजर। नाइस। रोचका नोएल करके एक डांसर है, क्रिमिनल्स क्रू, लेट विंस के क्रू का। ओके। तो ही वाज लाइक, जिससे फर्स्ट टाइम हिप हॉप वगैरह कहाँ देखा, बताइए? ये था दिल्ली में, भारत जैम करके एक जैम होता भारत है। जैम। हाँ, मनीष पॉप बाय क्रेजी, बहुत मस्त। एक यार चीज़, क्योंकि मैं बहुत इस साइड में रहा हूँ, हिप हॉप जैम वगैरह और ये सब कोरियोग्राफी स्पेस, मुझे लिटरली पता ही नहीं था कि ये कंटेम्प्रेरी और जैज और स्टेज स्टाइल का इतना बड़ा है अपना खुद का स्पेस। फर्स्ट ऑल्सो वन थिंग मुझे बहुत फैसिनेट करती है, वो है प्रोडक्शन एंड स्टेज जो आप परफॉर्म करते हो। जैसे आपने किबूत्स का बताया कि आपके टीचर ने बोला कि पहले एक तो शो देखने जाओ, और फिर बोला कि अगर तू इस कंपनी में, तो प्लीज़ रेकमेंड करो लोगों को कि ऐसी कौन सी कंपनीज है, ऐसे कौन से शोज है जो आपको जाके देखना चाहिए, वो आपके फील्ड में है नहीं है, जस्ट गो एंड एक्सपीरियंस दैट। यार आई फील लाइक sometimes you should go and watch everything because at least you'll know what you like and what you don't like, because art बहुत subjective है। तो अभी आपके पास अपॉर्चुनिटीज है, NMACC है, NCPA है, बहुत सारे आर्टिस्ट है, G5A है, बहुत सारे आर्टिस्ट कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं, कोई स्मॉलर स्केल पे, कोई लार्जर स्केल में। बट आई फील लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी एक्सपोज टू नॉट जस्ट इंटरनेशनल आर्टिस्ट एंड परफॉर्मेंसेस, बट इंडियन आर्टिस्ट क्या काम कर रहे हैं। लाइक अभी G5A में सौम्या कौतिया का एक परफॉर्मेंस हुआ, फिर जिया करके देयर इज अ, शी इज लाइक अ फिजिकल थिएटर क्यूरेटर, मूवमेंट आर्टिस्ट है, शी क्रिएटेड अ परफॉर्मेंस। ऑलवेज गुड टू वॉच दीज थिंग्स, बिकॉज आपको दिखता है कि वो आपकी एज के हैं, नए डांसर्स हैं, वो क्या सोच रहे हैं। दिस इज द कंटेम्प्रेरी ऑफ टुडे, राइट? दिस इज व्हाट्स इन द नाउ। सो आई थिंक whether you like it or not, it's great to expose yourself to that. बहुत musicals हो रहे हैं, NMACC is getting international productions down, and Akram Khan आया, which is Akram Khan, the whole company, they're amazing, you should watch them for sure. तो recommendations वैसे like I don't know exactly क्या देखना चाहिए, but एक चीज for sure है कि आपको देखना चाहिए, that is 100% sure. With regards to companies, if you're somebody who's into neoclassical work, then NDT is at the top of the game. Epitome है, Netherlands Dance Theatre, उनको देखो। बहुत companies है। There's a company that I like called No Dance. It's somewhere in Scandinavia. उनका movement मुझे बहुत पसंद है। There's a project that happens called the Biennale Danza Project. वेनिस में होता है, जहाँ पे मैं actually 2 बार select हो चुका हूँ, बट मैं गया नहीं। एक बार मेरा नहीं फट गया था वही टाइम, और दूसरे टाइम मैंने ऐसी खुद के वैलिडेशन के लिए अप्लाई किया था कि मैं हो जाऊंगा ना, हो गया, मेरा ठीक है चलो। जाना नहीं था मुझे, लाइक आई वाज मूवमेंट हब, अभी लास्ट ईयर की बात है। तो इट वाज जस्ट टू चेक कि माय स्टिल वैलिड, यू नो, मेरी बॉडी ठीक है ना। बस अकरम खान इज वन ऑफ माय फेवरेट क्रिएटर्स। देयर इज अ क्रिएटर नेम्ड सिडी लारबी,
उसका काम देखो, डेमियन हैले करके एक कोरियोग्राफर है, अलेक्जेंडर एकमन, ऑल ब्रेकिंग बाउंड्रीज विद रिगार्ड्स टू कंटेम्प्रेरी डांस. If you've not been exposed to Ohad Naharin का work और किबुत्ज कंटेम्प्रेरी डांस कंपनी का वर्क, वो भी देख लो, इट्स वेरी डिफरेंट. हिप हॉप वर्ल्ड का मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता, आई डोंट नो मच ऑनेस्टली इन टर्म्स ऑफ हु इज क्रिएटिंग स्टेज परफॉर्मेंसेस, तो मे बी यू कैन एक्सपोज द ऑडियंस टू दैट. बट जैज में तो बहुत लॉट ऑफ म्यूजिकल्स आर हैपनिंग. लाइक अभी वेस्ट साइड स्टोरी हुआ, फैंटम ऑफ द ओपरा हुआ NMACC में, और ये मेरे ड्रीम बुक में था ये कि मुझे वेस्ट साइड स्टोरी देखनी है लाइफ में. तो ऐसा लगता था कि मुझे इसके लिए न्यूयॉर्क जाना पड़ेगा, यू नो, तो वैसा सिचुएशन था. बट नाउ एवरीवन हैज द अपॉर्चुनिटी एंड द दे हैव इट इन फ्रंट ऑफ देम. बॉम्बे में BKC में हो रहा है, यू नो. नीरज करके देयर इज अ कोरियोग्राफर, नीरज लोहानी इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन. ही इज क्रिएटेड अ प्रोडक्शन कॉल्ड लेटर. उसने ऑलमोस्ट 20-25 शोज कर लिए एज एन इंडिपेंडेंट यंग कोरियोग्राफर. दैट्स एन इनक्रेडिबल अचीवमेंट. ही इज डूइंग अनदर शो नाउ विद तारिणी, हु इज अ कथक डांसर. तो वो शो देखो, बहुत 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 कूल चीजें हो रही है. इट्स जस्ट दैट यू हैव टू फाइंड योर पॉकेट. दैट्स द ग्रेट थिंग अबाउट बॉम्बे. यू डोंट रियली हैव टू, इफ यू डोंट ब्लॉक योरसेल्फ टू मच एंड से कि मैं यही स्टाइल करता हूँ, ये फॉर्म करता हूँ, और आप सिर्फ खुद को छोड़ दो कि मैं डांसर हूँ, मैं कहाँ जा सकता हूँ, क्या देख सकता हूँ, किसके साथ नाच सकता हूँ, आप रियलाइज करोगे कि आपके ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज एंडलेस है. बट इफ यू कैन गाइड देम अबाउट द हिप हॉप वर्ल्ड देन मे बी दैट विल बी नाइस. मुझे नहीं पता यार, मुझे बस पता है कि तनुज ने एक अपना पीस बनाया था पहले नित्य शक्ति के लिए, और बाद में G5 वगैरह भी फिर श्रीलक्ष्मी के साथ उन्होंने बनाया. तो आई थिंक तनुज इज डूइंग समथिंग लाइक दैट बिकॉज ऑफ सौम्या अगेन. हो सकता है. तो आपने भी खुद के पीसेस प्रोडक्शन बनाए हैं? हाँ, आई ट्राइड. तो बेसिकली मेरा टीचिंग में इतना ध्यान रहता ना यूजुअली कि मेरा प्रायोरिटी है वो. I love creating because I want to say what I want to say, and I realized over the creative process कि मैं जो बोलना चाहता हूँ as an artist, it's not about the world, it's not about what's happening outside so much, it's just very personal. So I want to share personal stories. I was working on a piece called Smile, जो 2 festivals में जा चुकी है. पेगडा में we got selected all over India में से, and then we also performed at प्रयत्न Dance Festival, slightly longer version. फिर स्माइल को लास्ट ईयर मैंने एंकल को थोड़ा इशू हो गया था, तो आई हैव टू जस्ट टेक सम टाइम ऑफ एंड देन होपफुली वील स्टार्ट अगेन. दैट्स अ मल्टीडिसिप्लिनरी पीस. तो उसमें देयर वाज इनिशियल स्टेजेस में देयर वाज लियो, देयर वाज दिस डांसर नेम रोहित हु इज अ डांस हॉल डांसर, देयर वाज शहान एंड विवरन एंड मी. तो 5 डांसर अलग नाचते हैं और हम सब मास्क पहन के नाचते हैं वो पीस में. तो इट्स वेरी it's a challenge for the audience also कि how do you view style, why are you judging someone based on their style. तो बहुत बार ऐसा हो जाता है ना कि कंटेम्प्रेरी डांसर एक्सप्रेसिव है या इमोटिव है या कुछ फील कराएगा, हिप हॉप डांसर को हम एंजॉय करेंगे. क्यों ऐसा? लाइक यू नो, आप कंटेम्प्रेरी को भी ऐसे एंजॉय कर सकते हो और हिप हॉप को भी यू कैन, एज लॉन्ग एज दैट्स द इंटेंशन ऑफ द परफॉर्मर ना. तो मेरा वो भी एक है कि मुझे हर चीज के थ्रू थोड़ा ये बैरियर्स बिटवीन डांस तोड़ना है. किसने बनाया है ये? किसी बंदे ने बोल दिया ये हिप हॉप है तो बोल दिया ये हिप हॉप है, यू नो. किसी ने बोल दिया ये जैज है तो वो जैज बन गया, यू नो. वो किसी ने बोला है और वो म्यूजिक पे नाचे है बस. बट जब हम क्रिएट करते हैं एज ऑफ टुडेज वर्ल्ड, आई थिंक एज आर्टिस्ट देयर आर इनफ आर्टिस्ट हु हैव ट्रेन्ड वेल इनफ टू ब्रेक दोस बैरियर्स एंड से कि मूवमेंट है और हम एज आर्टिस्ट कुछ बोलना चाहते हैं, हमें सुनो, बस दैट्स इट. ये प्रोसेस क्या होता है प्रोडक्शन का, और डू यू लाइक मेक मनी आउट ऑफ इट? You put a lot of money into it, that I will give you. If you are somebody that, at least currently in our country, it's different and बाहर it's very different. तो बाहर क्या होता है, एक आर्ट्स काउंसिल होती है मोस्ट कंट्रीज की. तो वो आर्ट्स काउंसिल में आप एक एप्लीकेशन भरते हो. लाइक आई सेड, स्कूल में सिखाते हैं कि ये प्रपोजल ऐसे बनाते हैं ग्रांट के लिए. तो वहाँ ग्रांट्स होती है. तो हर एक ग्रांट डिफरेंट होता है. तो यू कैन अप्लाई फॉर दोज ग्रांट्स एंड यू गेट मनी टू क्रिएट योर वर्क. एंड देन यू हैव टू डिजाइन वेयर यू वांट टू डू इट, हाउ यू वांट टू डू इट, प्रोडक्शन वैल्यू क्या है, डिजाइन क्या है, स्टेज क्या है, आपको सब पूरा करना पड़ता है. यहाँ पे फिलहाल कैसा है कि मोस्ट पीपल, सच्ची बोलूँ तो सबको थोड़ा इंडियनाइज्ड वर्जन ऑफ एवरीथिंग देखना है. अब मेरी ट्रेनिंग वो है नहीं लाइक कि मैं भरतनाट्यम कथक डालूं पीस में, और मैं ऐसा डांसर हूँ भी नहीं डिसऑनेस्ट सा कि जो सिर्फ बेचने के लिए वो डाल देगा. मुझे वैसा नहीं करना. तो मुझे अनफॉर्चुनेटली ना पहले काम बनाना पड़ता है कि मैं पहले बनाऊंगा एटलीस्ट 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, फिर मैं आपको दिखाऊंगा, फिर आपको पसंद आया तो आप शायद पैसे डालोगे. एंड वन वे टू रीच आउट टू फंडिंग इज देयर आर कपल ऑफ
places that are open. अभी एक अभिव्यक्ति करके फेस्टिवल है जिसमें मैंने अप्लाई किया है. G5A का परफॉर्मेंस ग्रांट्स होता है, तो थोड़ी थोड़ी चीजें खुल रही है, बट इट्स नॉट एज प्रिवेलेंट लाइक द काइंड ऑफ मनी यू वांट और पीपल गेट अब्रॉड टू डांस एंड टू क्रिएट डांस, वो यहाँ पे अभी फिलहाल है नहीं. वो जो आर्टिस्टिक परफॉर्मेंस वर्क की बात कर रहे हो, तो मैंने भी स्माइल में रिहर्सल्स, मास्क बनवाया, सारे स्टूडियो स्पेसेस का रेंट, म्यूजिक बनाने का कॉस्ट सब खुद पे लिया है. सो आई हैड टू वर्क हार्ड आउटसाइड ऑफ द स्टूडियो टू देन इवेंचुअली बिल्ड माई ओन लिटिल प्रोजेक्ट. And whenever that is built, I'll find out कि उसका कैसा, मतलब it has to also be a good piece of work, right? कभी कभी क्या हो जाता है, आप अपने विजन में इतना खो जाते हो कि आपको नहीं, like you are so attached to it, आपको नहीं समझ में आता कि अच्छा है कि नहीं है. So if it's good and if people enjoy it, तो it hopefully will make some rounds at theaters across the country. You'll have to still apply, you'll have to still send your work. कि ये मैं करता हूँ, ये मेरा पीस है, आप देखो, आपको पसंद है तो हम आपके थिएटर में भी करेंगे. फिर टिकट्स बेचने पड़ते हैं, मार्केटिंग करना पड़ता है, तो इट्स वेरी हेक्टिक एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट. इसलिए आप देखोगे थिएटर प्रोफेशनल्स भी सिर्फ थिएटर नहीं करते हैं, बिकॉज वो उसमें प्यार है, उसमें एक्सपीरियंस है, बट अनफॉर्चुनेटली पैसा थोड़ा कम है. एंड दिस इज नॉट जस्ट मी, इज व्हाटएवर एक्सपोजर आई हैव फ्रॉम अदर पीपल आल्सो, जितना मैंने समझा है. तो आप एक प्रोडक्शन बनाते हो, आप अगर ग्रांट मिल गया आपको तो आपको कोई इन्वेस्टर मिलता है बेसिकली, वरना आप अपने खुद के पैसे लगाते हो, फिर आप अलग अलग थिएटर्स में जाके परफॉर्म करते हो, एंड व्हाटएवर द टिकट सेल इज इट यू गेट दैट मनी. या इट डिपेंड्स ऑन द डील विद द स्पेस आल्सो. आप कोई छोटा वेन्यू लेके यू कैन रेंट इट आउट एंड डू इट. कोई लोग बोलते हैं पार्टनरशिप में करते हैं, कोई लोग बोलते हैं, तो डील्स वेरी करते हैं. आपको फुल फंडिंग भी मिल सकती है कि किसी एक बंदे ने देख लिया पीस and he says कि I love your work, I want to invest, some patron of the arts, मुझे पैसे डालने हैं, तो then you're lucky. but मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ. मेरा एक्सपोजर में मैं स्टिल बिल्ड कर रहा हूँ. मैं अभी तक मेरे काम को एक बड़े स्टेज पे नहीं लेके जा पाया हूँ जो मुझे करना है. hopefully through this one it will happen, what I'm working on currently. वेरी नाइस, वेरी नाइस. थोड़ा सा डांस के अलावा क्या क्या करते हैं आप, क्या क्या शौक है, क्या क्या एंजॉय करते हैं चीज़ें? यार मैं ये चीज़ ना, मैं थोड़ा आई लॉस्ट इट यार. मैं मेरे शौक बिल्ड कर रहा हूँ. मुझे खुद के बारे में एक सर्टेन परसेप्शन था टिल अ फ्यू इयर्स बैक कि मैं ऐसा करता हूँ, मुझे ये पसंद है, मुझे वो पसंद है, मुझे ये नहीं पसंद है. बट लाइक आई टोल्ड यू पहले कि मैं 18 to 22, जहाँ पे आप खुले सांड की तरह हो, कि अब कुछ भी कर सकता है, फर्स्ट ईयर डिग्री कॉलेज, स्ट्रेस ही नहीं, तभी मैं भाई बोल रहा था आई डोंट हैव टाइम टू, आई गॉट टू गो टीचर क्लास. तो मैंने डिस्कवर ही नहीं किया. तो अगर आप भी देखते हो तो मैं स्टूडियो आ जाता हूँ रिगार्डलेस, काम हो नहीं हो, मैं काम कर लेता हूँ, मैं काम बना लेता हूँ, बिकॉज मुझे नहीं पता क्या करना है टाइम के साथ. तो आई डिवाइड माई टाइम इन अ वेरी डिसिप्लिन्ड मैनर. आई हिट द जिम, आई डू दिस, आई स्लीप, आई ईट. मैंने रिसेंटली डिस्कवर किया कि मुझे लगता था मुझे बीचेस पसंद है, बट मैंने रिसेंटली डिस्कवर किया कि मुझे शायद पहाड़ पसंद है. लास्ट ईयर आई वेंट फॉर 7 days एंड आई स्टेड विद अ फ्रेंड ऑफ माइन मनीष, जो उसके घर के अंदर बहुत ही रिलैक्स्ड विलेज हाउस में हम रहे थे. कुछ नहीं, बैठे थे, चिल कर रहे थे, नो एजेंडा. पहली बार लाइफ में वो भी अच्छा लगा. I enjoy watching films, but I've not seen one in 3 months. तो वो भी अच्छा लगता है थोड़ा थोड़ा. I have a very very close set of friends who I will say are my only friends, जो मेरे दोस्त हैं जब से हम स्कूल में थे. तो some friends of mine are actually, I'm 29 now, minimum 24 साल पुराने, अच्छा, या 23 साल पुराने. और जो सबसे नए हैं उनमें से भी, उनको भी आई थिंक 15 साल हो गया. अच्छा. तो हम बहुत ही, जब भी टाइम मिलता है हम कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट मैं कोशिश करता हूँ कि कितने भी बजे कोई भी बुला दे, आई जस्ट गो एंड स्पेंड सम टाइम विद देम. हम कुछ नहीं करते हैं, बकचोदी करते हैं, घर पे बैठते हैं, टीवी देखते हैं. मेरे को PS खेलना बहुत पसंद था, बट अगेन मैंने 4 महीने में PS नहीं खेला है क्योंकि घर रेनोवेट हो रहा है साला. बट नहीं, आई एंजॉय प्लेइंग PlayStation. एंड आई कांट से आई एंजॉय ट्रैवलिंग टू मच. मैं अभी भी थोड़ा वर्कaholic टाइप का
इंसान हूँ तो मैं ट्रैवल के तीसरे दिन में काम करने लगता हूँ जो मेरी गर्लफ्रेंड को बिल्कुल नहीं पसंद. मेरे को बहुत कोसती है इस रीजन से जो इंटायरली इज ऑन मी. तो people think I achieved everything fast. I opened a company at 25. I think the reverse. I think I did what I was supposed to do fast. I am now achieving things. And this kind of self-discovery, I know myself today, but I'm discovering what I enjoy. I am discovering how to value things. मैंने बोला ना अभी last year में I've started to value my family more as a agenda, priority. कि कुणाल this has to be one thing that you prioritize in life. Sleep, prioritize in life. PlayStation, prioritize in life. और आजकल आप देख रहे हो आधा टाइम फोन पे चले जाता है, सोशल मीडिया, पोस्ट, एडिट, टाइम ही कहाँ है. तो मैं अभी फिगर आउट कर रहा हूँ प्रणीत कि मेरे को क्या पसंद है. मुझे नहीं पता. Genuinely, I'm genuinely telling. Have you ever heard me talk about something outside of dance with passion? कभी भी आप सोचो अभी, think about it. नहीं. Like how you sometimes show me a comedy reel, or you'll show me anime या कुछ आप जैसे बात करते हो. मेरे पास वो चीज़ों का नॉलेज ही नहीं है क्योंकि मैंने like you said ना तभी लेट हो गया था. तो टाइम नहीं था, करना था सब. तो मैं मेरे लिए बहुत like मैं जब यूके में भी था I was 22, मुझे लगता था मैं टॉप टीचर हूँ ना, तो मैं I should be social. Hey, what's up, भाई क्लास में मिले, hey guys, how you doing वगैरह वगैरह. That's a character that I played then. Today it's not a character. Today it's part of me. तभी क्या था कि मुझे एक स्विच ऑन था कि क्लास सिखाओ तो स्विच ऑन सोशल, क्लास से निकालो तो एंटी सोशल. तो जब मैं यूके गया ना मैं एक बंदे से बात नहीं कर पाता था. मैं हाई नहीं बोल पाता था टिल आई टॉट माई फर्स्ट क्लास. तो when I taught my first class over there also ना, I taught at a studio थोड़ा तभी थोड़ा मैं खुल गया. तो मुझे realize हुआ डिपेंडेंसी कि क्या है मेरा टीचिंग के ऊपर. तो over the years of training, fortunately I got rid of that. I enjoy it. It's part of my system. I love it to death. But उतना passionate मैं और किसी चीज़ के बारे में फिलहाल नहीं. मुझे ड्राइविंग बहुत पसंद है, अगर आप वो गिन लो. मुझे स्टडी करना बहुत पसंद है बॉडी के बारे में, बट अगेन डांस रिलेटेड है. तो यार टाइम कम है और वही सब में लगा हुआ तो. वन थिंग अबाउट कुणाल गाइज, उसका बॉडी एनाटॉमी का नॉलेज बहुत अच्छा है. मतलब ऑफ कोर्स होना भी चाहिए अगर आप इस प्रोफेशन में हो और आपको टीचिंग या फिर आप टीचर हो, किसी की बॉडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो तो वो एटलीस्ट आना चाहिए. बट टीचिंग को लेके आपको क्या लगता है, बिकॉज यू आर मोस्ट पैशनेट अबाउट इट, आपको क्या लगता है कि क्या कमियां दिखती है आपको लोगों में और क्या अच्छाइयाँ भी दिखती है? ओके, तो किससे स्टार्ट करूँ, कमियां की अच्छाइयाँ? आपको जो बोल रहा है. मैं ऑनेस्टली इतने क्लासेस अटेंड नहीं करता बाहर. हम जो भी हमारे स्टूडियो में होता है तो मैं उनको प्योर फीडबैक देता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा अच्छा करता हूँ ये. आई बिलीव दैट दिस इज अ स्किल दैट आई एम गुड एट. अच्छाई मुझे ये लगती है कि लोग फाइनली और सिखा रहे हैं कि डांस एज अ वायबल टीचिंग परफॉर्मिंग करियर अच्छा हो गया है. लोग कर सकते हैं आज. तभी तो ऐसा था कि हम कर रहे हैं बिकॉज हम पैशनेट है, पर पता नहीं पैसे कमाएंगे कि नहीं, वो आइडिया ही नहीं था. अभी लोग कर रहे हैं. People are able to do it, so that's the positive. I'm sure people have fun. They are bringing a lot of value to people's lives in terms of enjoyment. But what I think is lacking now is that there is no system to teaching. So the moment a dancer becomes good enough as a dancer, they start teaching class. But 2 and 2 is not 4. You cannot teach a class till you know how to teach a class. You know, because क्या होता है क्लास में, बहुत लोग आते हैं जो different background से आते हैं. Somebody might be conscious of their body. Somebody might feel too old in the class. Somebody might feel too young in the class. Somebody might not physically be able of certain things. You know, how do you tackle that situation? Are they equipped enough to deal with everybody in class? Are they equipped to make people feel through the way they communicate? Are teachers able to realize what they are saying? Like for example, जब आप roll down करते हो तो everyone says touch your toes. ये तो mandate हो गया. फिर आप नहीं कर सकते तो you are incapable for a moment because you are making it normal, touch your toes. But when I trained to be a teacher, I realized that you have to try and tell them to say, I want you to go as low as you can, closest to the floor as possible. So they know that they are doing their best.
somebody can touch their toes because closest to the floor तो toes है. Yeah. आप छू सकते हो तो और छू नीचे, बट अगर आप नहीं भी छू पा रहे हो कोई बात नहीं, आपका मैक्सिमम एफर्ट दो. ये छोटा सा लैंग्वेज चेंज मेक्स द क्लास पॉसिबल फॉर एवरीवन. बट ये चीजें नहीं कर रहे लोग. मैं बहुत बार क्लास में I want you to do this. Who are you to want me to do this, bhai? Listen to me in a class. Whenever I'm giving a task, I'll always say, guys, I want you to try and figure out how this feels like. Because you can only try. I can want you to do a backflip. Can you do a backflip? But if I say I want you to roll back to whatever ability, whether it's on the floor, in the air, or in standing, you will probably try one if you can. If you can't, you'll roll on the floor. The class is still possible for everybody. So we need to make dance more accessible, which I think is not happening. Also, I don't genuinely like this choreocentric world that we are in, because कोई भी कोरियोग्राफी को बेटर करने के लिए आपको ट्रेनिंग चाहिए. अब जो टीचर्स कोरियोग्राफी सिखा रहे हैं आज, वो तो बना रहे कोरियो, एंड लाइक छोड़ना, वर्कशॉप है कर लेते हैं. वर्कशॉप के बीच में एक बंदा लूज लेग्स कर रहा है, एक ट्रेन कर रहा है, फास्ट स्वर्ल्स कर रहा है वगैरह जो भी हो. मैं अभी हाउस यूज कर रहा हूँ एज एन एग्जाम्पल. बच्चे तो कर रहे हैं हील टू, बट बॉडी में जैक ही नहीं है, और उनको कोई ये बोल भी नहीं रहा है कि बॉडी में जैक नहीं है. तो हाउ विल दैट चेंज? आर वी रेडी जस्ट टू कमर्शियलाइज द आर्ट फॉर्म? आर वी रेडी टू डैमेज द कल्चर कंप्लीटली? बिकॉज somebody has built long enough to build from this groove. आपको पता है वो ग्रूव पहले आता है, फिर वो फुटवर्क आता है. बट अभी रिवर्स हो गया कि हमको वो फुटवर्क डालना है कोरियो में, तो फुटवर्क जल्दी हील टू बता दो. You know, like अब मैं जैज क्लास में जाऊंगा तो मैं आर्म्स कर दूंगा, बट उनको who will tell them the essence of the hip, how to style the shoulder, how to use the chin. These things are important because muscle memory is real, it stays. So what I don't like is these things, you know, कि आप ना ही उनको ट्रेनिंग करने दे रहे हो, ना ही वो कल्चर बिल्ड कर रहे हो. If you're teaching a workshop and you realize that you are not responsible, कि आपको नहीं सिखाना है basics, don't teach it, but tell them or guide them to somebody who's teaching them. Saying कि अगर आपको मेरी वर्कशॉप करनी है once in a month, करो, बट मैं मेरी वर्कशॉप में एफ्रो यूज करता हूँ, एफ्रो श्रेया सिखाती है, श्रेया के पास जाओ. या मैं मेरी वर्कशॉप में हाउस यूज करता हूँ, हाउस प्रणित सिखाता है, सैम्बो सिखाता है, सैम्बो के पास जाओ, प्रणित के पास जाओ. जैज अर्जुन सिखाता है, कुणाल सिखाता है, कंटेम्प्रेरी नीरज सिखाता है, कुणाल सिखाता है, सौम्या सिखाती है, जो भी है. तो आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है ये करना. अगर आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है तो खुद लाइक यू नो टीच इट योरसेल्फ. तो ये मेरे हिसाब से गलत हो रहा है. एंड व्हाट दे आर नॉट रियलाइजिंग इज दैट ठीक है, फन का पर्सपेक्टिव से वो करा रहे हैं क्लास में कि ठीक है नहीं हमको तो फन कराना है, बट वो फन में लोग गलत चीजें सीख रहे हैं. लाइक अगर मैं फन में एक बोल दूं कि पुशअप चैलेंज है और लोग ऐसे ऐसे पुशअप मार रहे हैं शोल्डर ऊपर करके, तो शोल्डर तो टूट जाएगा ना. तो फन में कुछ भी करा ले, यू नो. तो from a safety perspective, to perform things the right way, you have to do it like you have to teach it the right way, because they don't know, they are coming to learn. फिर आपकी क्लास में लोग आते हैं जिन्होंने 15 बार लूज लेग्स विदाउट द जैक किया है, और आप जैक डाल देते हो और बोलते हो कि पहले ये करो उसके साथ. फिर वो क्लास में उनसे लूज लेग्स नहीं होता, और उनको लगता है शिट मैं क्या खराब डांसर हूँ यार, मैं इतने टाइम से कर रहा हूँ तो भी नहीं आ रहा है. एंड दैट इज प्रेशर फॉर यू टू डील विद नाउ एज अ टीचर. Rather than that, at the beginning, guide them, tell them, hey, listen, go to this person and learn this. You know, I don't have the time to teach it, or research online. सब है online. तुझे पता होगा, everything is online, right? तो वो responsibility, I think, teaching word ही इतना, it's filled with responsibility. Yep. And I think that people are not realizing. People are doing it from a very commercial angle. हमको भी स्टूडियो पे कितने लोग मैसेज करते हैं, can I teach a workshop? My question is, can you teach a workshop? You want to, I know, but can you? Can you provide value in 2 hours? It's a short time. Are you able to be that teacher who is able to give them value through information, choreography, fun, energy, communication, togetherness, positivity, everything? Are you able to provide that in 2 hours? If you are, then yes, please come and teach. If not, then don't feel like you need to be part of the herd. कि बॉम्बे में सिर्फ ये हो रहा है, सब कर रहे तो कर लेते हैं. नहीं, there are so many shows happening. You'd rather go and be a dancer somewhere. You will make more money, faster money, lesser effort, with lesser responsibility. And if you want to teach, I genuinely feel like एक centralized थोड़ा teacher training system होना चाहिए. At least I can take responsibility for the styles that I have learned because I have done teacher training. I understand what it takes.
एंड ऑफ कोर्स मेरे टीचर ने अक्षत शर्मा करके एक डांसर है, ही इज अमेजिंग, ब्रिलियंट, ही टॉट मी अ लॉट. तो मेरा अभी जो बैंक है इट्स फिल्ड विद पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्लस एक्चुअल टेक्निकल नॉलेज. यू हैव टू थियोरेटिकली ट्रेन कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, सिलेबस कैसे डिजाइन हो रही है, आप म्यूजिक कैसे चूज कर रहे हो, क्लास का बिल्डअप कैसा होना चाहिए, anatomy wise what is important to do first, what is important to do second, what is important to do third. You can't just do a warm up and grooves, that's not how it works. You know, तो I think ये सारी चीजें कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, because सबको फटफट रिपीट वर्कशॉप, वो I don't like. तो क्या लगता है आइडियल सिनेरियो या आइडियल विजन गोल डांस कम्युनिटी कैसा दिखना चाहिए आपके हिसाब से? वो कैसा दिखना चाहिए मुझे नहीं पता यार, कैसा फील होना चाहिए मुझे पता है. तो आई फील लाइक everybody should feel safe in their bodies. Injuries, we should genuinely try and reduce injuries, genuinely, because that's a huge hurdle. और अगर आप इंजरी प्रिवेंशन के पीछे जाओगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली रियलाइज होगा कि आपको टेक्निकली कुछ चेंज करना है. वो टेक्निक का अंडरस्टैंडिंग आ गया, वंस द टेक्निक का अंडरस्टैंडिंग आ गया, you will be able to formulate your class well as a teacher. And I genuinely want to see more different styles kind of dancing together. I feel like वो हमारे स्टूडियो में होता है, बट अभी भी जो मैं पर्सनली एक्सपीरियंस करता हूँ कि मुझे स्ट्रीट स्टाइल्स करनी पड़ती है फॉर अस टू डांस टुगेदर. आई वॉन्ट यू गाइज ऑल्सो टू डू मोर कंटेम्प्रेरी वर्क और जैज वर्क, यू नो, बिकॉज एक परसेप्शन हो जाता है कि कंटेम्प्रेरी डिफिकल्ट है, जैज डिफिकल्ट है, हिप हॉप फ्रेंडली है, ग्रूवी है, बट वो सब में है, डिफिकल्टी हर चीज में अलग है. तो मुझे वो भी देखना है कि बहुत सारे बहुत टैलेंटेड मूवर्स है स्ट्रीट वर्ल्ड में, स्ट्रीट डांसर्स, इतने सुंदर मूवर्स. आई लुक एट देम एंड आई एम लाइक डूड, ये तो वो कर कंटेम्प्रेरी रहा है, उसको पता नहीं है सिर्फ. और अगर मैं उनका सिर्फ थोड़ा माइंड ओपन होता ना कि करते हैं कुणाल के साथ या करते हैं डांसर के साथ, तो कितने ब्यूटीफुल चीजें क्रिएट हो सकती है. फिलिप शबीब, पैकमैन, जो सिर्फ ये करता था, ही इज कोरियोग्राफ्ड ऑन एनडीटी व्हिच इज द बिगेस्ट कंटेम्प्रेरी डांस कंपनी इन द वर्ल्ड. पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस एंड दैट नीड्स टू हैपन मोर इन द डांस वर्ल्ड हियर. और मुझे ये भी लगता है अगर स्टाइल्स वाले अलग भी करते हैं ना सब अपने कम्युनिटी, हम भी, आई एम अकाउंटेबल कि हम अपने ही दोस्तों के साथ नाचते हैं. कंफर्ट है ना, बट कंफर्ट में कहाँ कुछ अच्छा बना है. सही बात है. तो कोलैबोरेशंस भी कम हो रहे हैं ना. कोलैब वर्कशॉप की कोलैबोरेशंस कोलैब हो रहे हैं सिर्फ वर्कशॉप्स के लिए. हाँ यार, आई फील लाइक ऑल्सो आई फील थोड़ा प्रेशर है ना, बॉम्बे में पैसा बनाना है, सर्वाइव करना है. बट दैट प्रेशर समटाइम्स ओवरराइड्स दिस आइडिया ऑफ लेट्स जस्ट डांस टुगेदर विद नो एजेंडा. लाइक अभी रिसेंटली स्टूडियो में मैं नाच रहा था एक लड़के के साथ, अचिंत्या करके है, ही जस्ट केम ही सेड कुछ करते हैं, एक दो विजुअल भेजता हूँ, लेट्स मेक समथिंग. कुछ एजेंडा नहीं है. एजेंडा ये नहीं है कि उसको फिल्म करना है, कुछ भी करना है, नहीं, सिर्फ बनाना है ताकि हम सीखें और हम बॉडीज को हैंडल करना सीखें. तो हम बना रहे कुछ, दैट्स इट, नो एजेंडा. बट इफ दिस हैपेंस विद डांसर्स, इनिशियली अनकंफर्टेबल होगा ना यार कि आप किसी को जानते नहीं हो, उसका लैंग्वेज अलग है. इट्स लाइक guy from Gujarat who has never left and a guy from Tamil Nadu who never left coming together. तो पहले कम्युनिकेशन में थोड़ा होगा ना, बट फिर बाद में आप अपना बॉडी लैंग्वेज समझ जाओगे. Whatever, you'll understand. Oh, he's saying no, he's saying yes. This could be yes also for someone. Could be no also for someone, right? You'll understand over time. But वो time कौन दे सकता है? I'm open. If anybody wants to come and dance with me, you will very rarely see me say no. Even though there is a lot to do. आपको पता है स्टूडियो में कितना काम है. But बहुत rarely ऐसा होता है कि मैं किसी को ना बोलूँ कि नहीं नाचते साथ में. और मुझे चाहिए कि मैं मेरा लैंग्वेज मैं काफी टाइम से कर्व कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ कंटेम्प्रेरी डांसर नाचेंगे, बट मुझे चाहिए कि और डांसर्स मेरा मूवमेंट एक्सपीरियंस करें, बिकॉज मुझे पता है कि इट्स नॉट स्टाइल और जॉनर स्पेसिफिक. मेरा मूवमेंट बहुत ओपन है. तो हाँ, आई होप वो हो. वर्कशॉप में सडनली बहुत पैसा आ गया ना एकदम से, तो वो ऐसा सेंटर ऑफ डांसिंग सेंटर ऑफ डांसिंग बन गया कि यार यू नो द थिंग विद वर्कशॉप्स इज, मुझे पता नहीं कि कौन लाइक कोई तो है जो पैसा कमा रहा है बट कोई ऐसे भी है. सच अ वियर्ड थिंग ना. एक क्लास में 70 लोग हैं, दूसरी वर्कशॉप में अच्छा भी टीचर हो, कभी कभी गाना भी अच्छा है, 3 लोग आ जाएंगे सिर्फ,
और उस केस में तो सबका लॉस है। 3 लोग 1000 रुपए भी भर दे 3000 रुपए होता है। स्टूडियो का रेंट आपको पता है कितना महंगा होता है, कोई भी पैसा नहीं कमाएगा। तो आई फील लाइक मुझे नहीं पता वर्कशॉप का वर्ड, मैं तो करता हूँ बिकॉज समटाइम्स मुझे एक नया कोरियोग्राफी का आइडिया आ गया तो मेरे को मन करता है कि मैं शेयर करूँ जस्ट टू एक्सपीरियंस इट, टू सी व्हाट आई कैन डू एंड ऑल्सो टू एक्सपोज इट, बिकॉज आजकल थोड़े थोड़े ऑडियंस है जो रेगुलर्स नहीं कर पाते, लाइफ इतना हेक्टिक है, वर्क आवर्स तो कुछ भी हो रहा है बॉम्बे में, मतलब लोग 9 to 9 कैजुअली काम कर रहे हैं, लाइक ये 9 बजे खत्म होता है वर्क, तो अब क्या बोलूं मैं कि 11 बजे क्लास थोड़ी करेंगे यू नो, बट इवन दो माय बैच इज लेट यू नो, बट आई डोंट नो, मेरे को वर्कशॉप का नहीं बहुत है, तो इफ आई थिंक अबाउट इट मैथ वाइज जो कर रहा है उसका है, बट वो क्रैक क्या है कोड मुझे नहीं पता। वो मेरी भी एक दोस्त से बात हो रही थी, आई ऑलवेज टेल कि इंटरनेट इज रैंडम, द वर्ल्ड इज रैंडम नाउ, आपको नहीं पता क्या चलेगा। पहले होता था कि ठीक है आपको अगर दिखना है तो आपको स्किल वाइज बेहतर बनना पड़ेगा, आप जब सबसे बेस्ट हो तो आप दिखोगे। अभी कोई भी दिख जाता है कुछ भी करके, और जो दिखता है वो बिकता है। एंड वही है कि आजकल ये भी मुझे बहुत गंदा लगता है कि जितना आसान कोरियोग्राफी उतना ज्यादा पॉपुलर होगा। बिल्कुल होता है ना, बिल्कुल बिल्कुल लोग कर पाते हैं। अब इसका एक चीज है कि लोग बोलेंगे हाँ डांस को एक्सेसिबल बना रहे हैं, डांस को एक्सेसिबल बनाएंगे, फिर मैं बोल रहा हूँ कि उस पर्सपेक्टिव से बनाओ, बोलो कि ये मैं सबके लिए बना रहा हूँ फन करने के लिए, ये मत बोलो कि कोरियोग्राफी ऐसी होती है, बिकॉज कोरियोग्राफी एक स्किल है। आप फिर लाइक एक आर्किटेक्ट अगर एक सीधी बिल्डिंग बनाते रहेगा साल भर 80 साल के लिए, सेम बिल्डिंग सेम स्ट्रक्चर सेम बिल्डिंग से, तो आप भी बोलेंगे ना यार क्या आर्किटेक्ट है। वो एक स्किल भी है एट द एंड ऑफ द डे। हम एज अ शेयरिंग, चलो आपने बोल दिया कि ये स्पेशली बिगिनर्स के लिए एक फन कॉम्बो है, ठीक है, बट आप अगर ये बोलते कि यही कोरियोग्राफी है तो फिर आई हैव अ प्रॉब्लम विद इट, बिकॉज ये नहीं है भाई कोरियोग्राफी। वो देखो मस्ती कर रहा है पीछे नीरज। अच्छा नीरज है, हाँ बढ़िया यार मेरे को। हाँ हाँ देन तू बोल। आई वाज गोना आस्क यू ओनली कि लाइक व्हाट डू यू थिंक। मैं तो थोड़ा क्रिटिकल हो रहा हूँ बट हाँ देखो मुझे लगता है सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आपको एज अ पर्सन आपकी सारी चीजें आउट देयर करनी है। करेक्ट, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल आप ड्राइव करते हो सुबह स्टूडियो तक, जस्ट इमेजिन कि आपने फ़ोन रख दिया और आप गाने सुन रहे हो और चलते चलते अब आपने बोला कि दिस इज़ अ वेरी गुड सॉन्ग, ये यहाँ पे आया था, प्लीज़ लिसन टू दिस। आपने 3 गाने रेकमेंड कर दिए, स्टूडियो आ गए, बैठ गए, कॉफ़ी पीने लग गए, आपने बस बोल दिया कि मैं डेविड ऑफ की कॉफ़ी पीता हूँ, मस्त कॉफ़ी है, या आपने बोल दिया कि यार जेप्टो की बहुत अच्छी कॉफ़ी। बस मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ें। आप डांस करने चले गए, आप बोले कि यार ये शूज़ मत पहनो, ये शू, या फिर ऐसे ही बना दिया कि ये मेरा शू का कलेक्शन है, ये 3 शू मैं ऐसे पहनता हूँ, ये 3 शू मैं हिप हॉप के लिए पहनता हूँ, ये शू। आपको नहीं पता लोगों को क्या पसंद आएगा, लोगों को कुछ भी पसंद आता है। जैसे मेरी दोस्त साक्षी आई थी ऑस्ट्रेलिया से, डांस कर रहे हैं, ठीक है, सब कुछ, और हम लोग बात कर रहे हैं कि यार ये डिफिकल्ट है, ऐसे है, वो ट्रेन कर रही है। मैंने उसको बोला कि अगर तू सिर्फ 6 महीने आती, तू बस व्लॉग करती ना कि मैं आई एम अ ऑस्ट्रेलियन पर्सन कमिंग टू बॉम्बे फॉर ट्रेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग दिस डांस, तेरे को नहीं पता, तू जाते टाइम सक्सेसफुल पर्सन शायद हो जाती मनी वाइज। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त हैं वो इतने, उनका ऑफ पर्सनालिटी इतना मस्त है ना, मेरे को लगता है अगर ये कैमरे में कैप्चर हो जाए तो कितने लोग देखेंगे। आई टेल यू इसका मेरा क्या पर्सपेक्टिव है। तेरा बात एकदम सही है बिकॉज यू आर ऑल्सो 6 years younger to me, तो बिकॉज यू हैव सीन दिस वर्ल्ड ऑफ कंटेंट एज अ फर्स्ट, मेरे लिए दिस स्टार्टेड ऑफ 4 years आफ्टर आई वाज डांसिंग। जब मैं 4 साल क्लास सिखा चुका हूँ, जब हम वीडियो फेसबुक पे डालते थे और फेसबुक पे 15,000 व्यू आते थे, समझ रहे हैं, फेसबुक पे 15,000 मिलियन बराबर हो गया यार इंस्टाग्राम पे, मतलब ओवर। तो आई एम फ्रॉम दैट जनरेशन की इंस्टाग्राम इज नॉट, मेरे दिमाग में नहीं आता है, आई हैव टू अडेप्ट एंड आई सक एट अडेप्टेशन बिकॉज मेरा पर्सनल इन्वेस्टमेंट है लोगों में। तू देख ऑन अ डेली, तू देखता है मैं कितने लोगों में कितना इन्वेस्ट करता हूँ। किसी ने कुछ बोल दिया किसी को, मैं बैठ जाता हूँ, बताओ क्यों किया, कैसे किया। तो मेरा इतना पर्सनल इन्वेस्टमेंट है ना कि मैं मेरे बारे में भूल जाता हूँ। तो मेरा तू कंटेंट मैनेज कर। नहीं, आई थिंक यू वुड हैव हायर अ बेटर सोशल मीडिया मैनेजर। No, I'll have to hire a personal social media manager. But you're right though, I completely agree यार कि like अभी जो तूने बोला सुबह को, मैं कितना ऐसे कंटेंट देखता हूँ जो मुझे खुद पसंद है, बट मेरे दिमाग में ये नहीं आता कि मुझे ये बनाना चाहिए।
तो मेरा वो वीकनेस है आई थिंक. आपको ये पता है कि मूवी चलती है और उसका मूवी मेकिंग भी वीडियो बहुत चलती है हाँ बिहाइंड द सीन्स, करेक्ट कि ये नोलन ने बनाया कैसे है, करेक्ट करेक्ट. इसने ये कैसे सोचा, इतना पैसा कैसे लगा. तो वो सारी चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग है. मुझे लगता है सब कुछ आउट देयर करना चाहिए. कभी कभी मैं ना डी वैल्यू कर देता हूँ उस चीज को. खुद का जो प्रोसेस है ना, मुझे ऐसा लगता है यार इतना मेहनत सब करते होंगे, इतना तो सब सोचते होंगे, बट वो मैं डी वैल्यू करता हूँ जो गलती है. तो इस पॉडकास्ट के बाद मुझे थोड़ा इनकरेज करो. मैं जेन्युइनली लाइक हम लोग बहुत करते हैं दिन में. आपको पता है कि हम लोग 9 से 11-12 तक काम करते हैं, कितनी अलग अलग चीजें करते हैं. एक दिन में कल हम लोग ने शिव पार्वती का कुछ प्लान किया, एक एड फिल्म प्लान किया, क्लासेस प्लान किए, 4 क्लासेस सिखाई, 2 स्निपेट शूट किए. कितना अलग से कितना कुछ होता है अगर हम लोग वो अच्छे से थोड़ा क्यूरेट कर पाए. पर्सनल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कंपनी पेज. तो कितना कूल होगा. बिल्कुल. मेरे को बस ये लगता है इस चीज़ का एक नेगेटिव कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं अच्छा कंटेंट देखने की कोशिश करता हूँ, वेदर इज एनिमे, टीवी शोज, कुछ भी, एंड आई वांट टू टॉक अबाउट दैट, बट मुझे ऐसा लगता है ये मेरी सेकेंडरी पर्सनैलिटी है. मैं मेन एज अ डांसर दिखना चाहिए कि मैं, और वो स्किल जब तक नहीं दिखेगा मुझे लगता है कि ये तो ठीक है, इसको बाद में दिखा दूंगा. बट शायद क्या पता कोई मेरा डांस देखना ही नहीं चाहता. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मेट्रो में चला गया और मैंने बहुत अच्छे कपड़े पहने, एकदम क्रेजी, बहुत अच्छा स्टाइल किया और थ्रिफ्ट किया सस्ते में, और मैं गाना गाना स्टार्ट कर रहा हूँ और लोग बोले कि यार अच्छा तो नहीं गा रहे, मत गाओ, लेकिन हमें बताओ कि आपने ये कपड़े लिए कहाँ से और आपने क्या किया. तो इट इज कि आपको क्या करना है और लोगों को क्या चाहिए आपसे, उसका थोड़ा सा आई थिंक वो आपके कंट्रोल में नहीं है. बिकॉज जैसे ही मैंने बोला ना स्टूडेंट्स के बारे में, जब क्लास में आते हैं, पीपल कम फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ. कंटेंट भी सबके लिए अवेलेबल है. अभी बहुत लोग हैं जो मुझे एकदम क्रिंज लगते हैं, जो शायद तुझे पसंद हो कंटेंट वाइज. तो ये अब मैं फालतू एडवाइस दे रहा हूँ, मैं करता तो नहीं हूँ खुद, बट आई थिंक इफ यू आर सो पैशनेट, बिकॉज जितना मेरे को समझ में आ रहा है, लाइक आई थिंक यू हैव अ लॉट ऑफ आइडियाज विद रिगार्ड्स टू कंटेंट. आई थिंक जस्ट पुट इट आउट. एंड आपका डांस, एटलीस्ट मेरे नॉलेज में, जो लॉन्जेविटी है ना डांस करियर का, and people that you build that will go on with you forever, that is building here anyway. And उसका थोड़ा exposure आते रहेगा. But you don't have to be that person. हाँ, in fact वो personality आप क्लास में भी लेके आ जाओगे तो it'll be fun. You know, maybe it's something that's your USP. फिर आप ये एक अलग की प्रणत की क्लास में ये, like he'll be filming one meme today with the students. बिल्कुल, you don't know, you never know, you know. तो of course आप 7 दिन ट्रेन करो, या रोज ट्रेन करो, एक 10 मिनट का, उसमें से कुछ फनी आपको अगर कुछ कंटेंट आइडिया आया बना दो. रिचर्ड फाइनमैन जो फिजिक्स प्रोफेसर था, ही वाज नॉट द ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट, बट लेकिन क्या वो टीचर ऐसा था, या फिर वो बात करता था, कम्युनिकेशन स्किल, प्लस ही वाज चार्मिंग विद हिज, ऐसे लेडीज के साथ थोड़ा फ्लर्ट करना, तो वो लाइक दैट इज पर्सनालिटी. या वो उसका हिट हुआ. नहीं, दैट्स व्हाट आई थिंक, लाइक मेरा यूएसपी जो है, मुझे लगता है कि मैं जितना पैशनेट में हूँ जब मैं डांस सिखा रहा हूँ, उतना शायद ही बहुत कम लोग होंगे जो उतना पैशनेट किसी भी चीज के बारे में हो. तो वो मेरा दैट्स माई, आई फील लाइक दैट नोबडी कैन टेक अवे फ्रॉम मी. तो आई वांट टू शोकेस दैट. अभी लाइक आई टोल्ड यू, आई डिडंट डिस्कवर दीस थिंग्स. लाइक जैसे तुझे आइडियाज आ रहे हैं, तुझे जो चीजें पसंद है, ये तूने डिस्कवर किया, दैट्स एन एडवांटेज टू यू. मेरा डिसएडवांटेज है कि मैंने ये पूरा अपना लाइफ दे दिया है इसको. बिकॉज 16 के पहले मैं क्रिकेट खेलता था, उसके बाद मैं सीधा डांस करने लग गया, और उसके अराउंड कुछ नहीं था. तो यू शुड यूज दिस. मेरे को लगता है आपको वैसा स्केलेटन लेके आना चाहिए क्लास में, और स्टिक विक के साथ, यहाँ पे ये देखो ये मसल है, ये करना तो चाहिए यार प्रणीत. कितने आइडियाज है, ये करो, वो करो, ये करो. यहाँ सारा कंटेंट टाइम पे अपलोड नहीं हो रहा है. सच्ची बोल रहा है यार. नहीं, लाइक आई वांट टू डू एवरीथिंग, बट इट हैज टू बी प्लान्ड बेटर. लाइक हम लोग को एक ही दिन में 15 वीडियो निकालने पड़ेंगे. या तो एक लेक्चर क्लास ले सकते हो ना, आर्ट क्लास में से एक, लाइक द क्लासरूम. वी वर थिंकिंग ऑफ द TMH ना, द मास्टरी आवर. या उसमें बिल्कुल, तो उसमें कर सकते हैं. कुणाल विल टीच वन मोर बैच. व्हाई नॉट. अभी बहुत कम है ना. एनीवे, बैक टू द कम्युनिटी. आई हैव दिस क्वेश्चन कि व्हाट डू यू थिंक द कम्युनिटी हैज गिवन यू एंड व्हाट यू हैव गिवन टू द कम्युनिटी? So I will talk about community as my students, okay? Because they are my community. तो उन्होंने तो मुझे बहुत दिया है. Like मैं बहुत बार बोलता हूँ कि यूनिवर्स का काम करने का एक सिस्टम है जो हमें नहीं समझ में आता.
but I genuinely believe do good, think good, be positive, be a good human being and good comes back to you. तो बहुत दिन होते हैं, आपको भी होगा कभी कि आपको मन करता है कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये डांस, क्विट कर देते हैं. मुझे आज तक होता है कभी कभी कि यार शुड आई रियली बी डूइंग दिस. उसी दिन में पता नहीं क्या हो जाता है, मेरे कोई पुरानी स्टूडेंट का मैसेज आता है, हाय कुणाल, हाय, आई जस्ट वांटेड टू टेल यू, आई वांटेड टू से थैंक यू फॉर चेंजिंग माय लाइफ. I was talking to somebody and I realized that I'm so much more confident today because of things that you have made me realize about myself. And I don't know how I'll ever repay this. और फिर मुझे लगता है यार कि how am I even questioning what I'm doing? When my impact is not even just people around me, it's everywhere in the world. This person could be in the US. मेरी एक student है, she messaged me saying, Kunal, I'm coming back to the US. Coming back to India from the US. And can't wait to do your class. So I said, yeah, amazing, look forward to see you soon. She's like, honestly, it's the only thing I'm excited about. In fact, मेरी मम्मी को जब पहले फ़ोन किया तब यही बोला, मॉम I'm coming back, कुणाल की क्लास करूँगी. तो मम्मी बोलती है मेरे बारे में भी सोच ले, you've not seen me for a year. And I have genuinely not taught that girl for 2 years. But when you realize you're leaving that kind of an impact, then something's right. So they are my community. They have my back unsaid on days where nobody else does. They humble me. Recently, a student of mine reached out to me saying, when the studio opened, saying, you look a little stressed. And we don't recognize this side of you because you're always giving. And I could be honest to them and say, I can't give right now. Just be with me for a month. Just allow me some time for a month. And they did that. Yeah. And so today it's a give and take. It's amazing. What I'm giving to the community is this year. Just this approach, everything you've heard today. I want people to be more open, more giving, more loving. I want people to dance together more from all genres, from all forms. We do What's the Scene, we do Elemental Playground, just to expose the crowd to what movement with intention and communication can be. हमने एलिमेंटल प्लेग्राउंड में कितना कुछ किया है, व्हाट्स द सीन में कितना कुछ किया है. वी डू सेमिनार्स, पैनल डिस्कशंस, परफॉर्मेंसेस, एग्जीबिशन, परफॉर्मेटिव बैटल्स, कितना कुछ करते हैं जस्ट टू मेक श्योर दैट द ऑडियंस इज एक्सपोज्ड. सो व्हाट वी आर डूइंग फॉर द कम्युनिटी, आई वुड इवन गो टू से दैट नोबडी एल्स इज डूइंग. लोग इंडिपेंडेंट स्टाइल्स में कर रहे हैं, हम बैरियर्स ही तोड़ रहे हैं कि कोई है ही नहीं स्टाइल. आपका स्टाइल आपका है. आप जो फॉर्म सीखते हो, ग्रेट, लर्न दैट फॉर्म, ट्रेन दैट फॉर्म, वर्क हार्ड ऑन दैट फॉर्म. व्हेन यू डांस, व्हेन यू आर इन अ रूम एंड द सॉन्ग इज प्लेइंग, इज यू इन द म्यूजिक, दैट्स इट. तो ये कंट्रीब्यूशन जो हमारे स्टूडेंट्स जो आज आ रहे हैं, जो अपने बॉडी को रिस्पेक्ट, व्हाट आई आल्सो लाइक इज अ लॉट ऑफ आवर स्टूडेंट्स रिस्पेक्ट देयर बॉडीज नाउ. दे नो व्हेन टू स्टॉप, दे नो व्हाट इंजरी प्रिवेंशन इज, नॉट जस्ट क्योर इज. दे लव एंड रिस्पेक्ट ऑल फॉर्म्स दैट हैपन एट द स्टूडियो. तो ये जो परसेप्शन हम खोल रहे हैं ना कि जस्ट लव डांस, fall in love with the form, don't fall in love with a particular style of the form. Respect everybody, respect yourself, respect your body. I think those kind of contributions we are giving to the community. Besides our events, our events are amazing. What's the Scene बहुत अच्छा है, what happens there. DGAF भी बहुत cool है, where we just make people dance and just make them experience the joy of dance. तो वही है कि at the end of the day, I feel like we are contributing an openness, mental openness towards the audience, and what I receive is just a lot of positivity from my people. Like मैंने ओपनिंग के दिन भी बोला था कि कोई भी ऐसे टीम नहीं मिलेगी जो पहले पूछेंगे कुणाल क्या करना है. सब पहले पूछेंगे कुणाल क्या करने के लिए पैसे कितने मिलेंगे. सब पूछते हैं यार. बट ये जो मेरे को, I feel like वही, the world goes around, right? What goes around comes back around. You do good. I've done so much good for so many people. My students still today call me 3 years later saying, Kunal, back is hurting. What do I do? I never question कि मुझे क्यों फोन कर रहा है. मैं हाँ भाई बोल, एक second. I'll just get out. Send me a photo. Send me a video. What is hurting? And because I'm relentlessly giving, I feel like the world relentlessly gives back. But हाँ एक चीज मैं बोलूँगा कि डांस, प्रोफेशनल डांस कम्युनिटी से I don't think we've received enough support. I don't think you can share your opinion about it, but I don't think कि जितना हमने effort डाला है to go out, me personally at least, to go out and support events, to support people, I do it consciously as a part of my job, saying Kunal, you will succeed if dance succeeds, please go and support. I don't think so many people do that with me. I have had people call me saying, Kunal, I need to look for a sponsor for an event, how do I do it? Because you were the first to do it.
here at least. And I know questions asked, I was like ऐसा कर, सुन ऐसे, इसको फ़ोन कर, उसको फ़ोन कर. मैं घूम के उनको बहुत बार बोल चुका हूँ कि मेरे इवेंट के बारे में शेयर कर दे. सिर्फ forget coming, you were part of the event also, but forget coming, at least share about the event. Lot of people haven't shared, a lot of times. And I feel like ठीक है, you can say I got caught up and everything, but if you are from that perspective कि आपको डांस को हेल्प करना है, सक्सीड करना है, तो ये आपका फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है. और मुझे जेन्युइनली नहीं लगता कि लोगों ने एफर्ट डाला है. एफर्ट डालना पड़ता है प्रणीत, यू हैव टू गेट आउट ऑफ योर लाइफ एंड से मुझे इससे पैसे नहीं मिल रहे हैं, बट आई गॉट टू बी देयर टू मेक श्योर आई एम पार्ट ऑफ दिस बिकॉज दे आर मेकिंग दिस हैपन फॉर द कम्युनिटी, यू नो. तो आई डोंट थिंक वो हमें रिसीव हुआ है, एंड आई एम जस्ट गोना बी ऑनेस्ट अबाउट इट. देयर इज नथिंग लाइक, वी हैव स्टिल डन वेल, बट the amount of professional dancers that should show up have not been showing up. थोड़ा लोग इंडिविजुअल सेल्फिश माइंड से भी आते हैं. मैं मतलब इवन इफ आई थिंक अबाउट हाउ आई थिंक, बट जो मैंने जो जब डांस देख के इंस्पायर हुआ है वो है कि जब भीड़ में सब चिल्ला रहे और फिर कोई नाच रहा है. इवन दो इंडिविजुअल वीडियो सभी बना रहे थे, हमने नॉन स्टॉप को भी देखा है पॉपिंग करते हुए स्ट्रीट पे, उससे भी इंस्पायर हुए. लेकिन जब वो एक जैम का वीडियो आता है जहाँ पे somebody is going crazy और लोग चीयर कर रहे हैं और वो साइफर जब होता है, उसकी एनर्जी थोड़ी ज़्यादा होती है ऑफ कोर्स एज अ कम्युनिटी साथ में. बट मैं वही बोल रहा हूँ कि ये जो जैम का आइडिया है, जैम में 100 लोग जाते हैं, बट अगर मैं एक इवेंट करता हूँ जहाँ पे 2 इवेंट भरतनाट्यम के हैं स्टार्टिंग में, एक कंटेम्प्रेरी का है और 2 हिप हॉप के हैं, तो आएंगे हिप हॉप डांसर्स? नहीं आएंगे, मुश्किल है. क्यों? आपने पहले ही खुद को बॉक्स कर दिया. व्हाट इज हिप हॉप? इट्स अ कल्चर. ठीक है, जब आप डांस करते हो, व्हाट डू यू टॉक अबाउट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, टेल मी. बाउंस, उसके फाउंडेशन बाउंस रॉक्स. और ठीक है, उसके बाद जब आप सर्कल में हो क्या कर रहे हो? मतलब बी वन विद द सॉन्ग एंड बी वन विद द पीपल टू ग्रूव टुगेदर. या वन विद द सॉन्ग, वी वन विद द पीपल, ग्रूव टुगेदर. वो कोई भी स्टाइल में हो सकता है. तो आप ही क्यों खुद को बाउंड कर रहे हो कि मुझे सिर्फ बिकॉज मुझे बोला है कि बैटल करना है तो मैं बैटल करता हूँ, जैम में जाता हूँ. आप देखो तो बाहर क्या हो रहा है. मे बी यू आर जस्ट द सेम एज अनदर डांसर हु डज अनदर स्टाइल, और मे बी आपको वो स्टाइल से सीखने कितना मिलेगा जो आप अपने स्टाइल में यूज कर सकते हो, बिकॉज स्टाइल इज पर्सनल लाइक आई सेड. बट व्हेन विल यू गेट एक्सपोज्ड? आई नो एज अ कंटेम्प्रेरी डांसर आई हैव बीन एक्सपोज्ड टू जैम्स, I have been exposed to battles. I have been exposed to hip hop productions. I have been exposed to contemporary dance productions. I have watched Bharatnatyam, Kathak work. I have watched jazz musicals. I learned from everything. Everything is inspirational in its own way. You can at the end of the day work on your craft the way you want to do, but why are you not exposing yourself to at least find out कि आपको exactly क्या, maybe आपके गोद में hip hop गिर गया, आपने कर दिया, ठीक है, बट जब आप खुद का इवेंचुअली क्रिएट करना चाहते हो एट सम पॉइंट, वाई लिमिट योरसेल्फ टू द आइडिया ऑफ कि मैं सिर्फ बाउंस रॉक स्केट में खेलूंगा. आपको क्रिएट करके कुछ बोलना है ना. वो जब कर रहे हो तब आप थोड़ी सोचोगे कि मुझे सिर्फ बाउंस करके करना है, नहीं होगा. आपको कुछ बोलना है तो आपको वो मूवमेंट कहाँ से आएगा? आप अपना वोकैबुलरी का चेन ही नहीं बढ़ा रहे हो, मुझे ऐसा लगता है. तो आई सी अ लॉट ऑफ दैट हैपनिंग यार. लाइक आई फील लाइक मैं बहुत न्यूट्रल हूँ, मैं सारे टाइप के इवेंट्स अटेंड करता हूँ. इफ आई हैव द टाइम एंड द स्पेस आई मेक अ जेन्युइन एफर्ट, आई गो, बट आई डोंट सी इट हैपन ऑफन. एंड आई एम नॉट जस्ट सेइंग हिप हॉप डांसर्स, जैज वाले भी नहीं जाते जैम्स में. मैं चले जाता हूँ सिर्फ देखने भी, अगर मैं बैटल नहीं भी करूँ, बिकॉज यू नो आई कैन डैबल इन स्टाइल्स, बट I don't go there for that. I go there just to be part of it, see what's happening, you know, see कि like मैं last year Bay Jam में भी गया था, कुछ नहीं, 2 घंटे के लिए गया, 3 घंटे के लिए गया, just to see what's happening. Oh, it's nice, it's cool, I supported it, I bought my ticket, I entered. Somebody with credit is doing it. Yeah, I think वो सब important है यार. थोड़ा थोड़ा टाइम निकालो. जब तक एक्सपोज नहीं होगे चीज़ों को तो आपको पता ही नहीं चलेगा आपको क्या पसंद है. Maybe you are a contemporary dance lover, you just don't know it yet because you've not allowed it to inspire you. Maybe as a contemporary dancer you're actually a hip hop lover and you don't know it yet because you've not allowed it to inspire you. At least allow it, open the door. Some days you'll not like it. You're like, I didn't like that. But at least you know what you didn't like. That's a step forward. Yeah. Agree. थोड़े दरवाजे खोलने की ज़रूरत है सबको. Nice. Thank you, Kunal. It was
Nice. I want you to please recommend good dancers, good videos to people कि please अगर आपने नहीं किया तो देखो. That will be very inspiring. Maybe it's a YouTube videos, maybe it's some dancers, some Instagram pages, कोई book, कोई music. Wow, tricky. There are some good dancers. I will mention Indian dancers who are doing great work abroad also. There's a dancer named Aishwarya Raut. She's dancing with a company named Rambert, I think, at least. Rombe. There's another dancer named Manish Chauhan. Very, very good dancer. He'll be in the country soon. I would like to say myself, Neeraj, very good in the contemporary space. In the hip hop space, I genuinely enjoy watching Tanuj a lot. Genuinely enjoy. I love watching my people freestyle. I love watching Shahan freestyle. I love watching you freestyle. So more people need to see you, I feel. I don't think इतने लोगों ने देखा है. I don't know. I'm very biased to my people. I love the way Pooja creates. I think more than a mover, I think she's a brilliant creative mind. I think that needs to be exposed to the world a little bit more. There's a dancer called Ishita Mili who's doing some fabulous work in the US. बाहर के अगर आप डांसर्स की बात करो तो माय फेवरेट कंपनी टू वॉच इज ऑलवेज अक्रम खंडांस कंपनी. आई थिंक दे आर ब्रिलियंट विथ बीइंग सुपर क्लियर विथ नैरेटिव्स. ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट नहीं है. फिर एक पार्टनर वर्क के लिए एक कंपनी है गेन आदिर एंड मरिया कंपस. यू कैन वॉच देम. दे डू अ लॉट ऑफ नेचुरल मोमेंटम रिलेटेड पार्टनर वर्क. इधर उधर फेंकते रहते लोगों को. यूल गेट एक्सपोज टू दैट. व्हाट एल्स कमर्शियल पर्सपेक्टिव से अगर वर्सेटाइल डांसर देखो तो लाइक आई टोल्ड यू लास्ट नाइट, आई लव शॉन लू. आई थिंक ही इज लाइक अ फ्रिकन blessed soul. I hate him also and I love him also because he's so good. Baki, I don't know, any Indian dancers that you can recommend? Lot of breakers, of course. My favorite. I love Flying Machine. I proclaim I love Flying Machine. I love him. I just think वो जितना authentic है, he lives it. He genuinely lives it. Every part of it. So I love it. मैं आजकल बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ किसी बंदे से, तो रूबिक्स है. Okay. मतलब या ही इज़ इन डिफरेंट जोन. वो दिख रहा है कि एनीमे आर्क आता है ना कैरेक्टर का, वैसा उसका एक आर्क चल रहा है. डू फॉलो हिम ऑन इंस्टाग्राम. उसकी स्टोरीज देखो. एवरीडे ही दिख जाएगा वो जोन में है. कुछ तो कुछ भी लिखेगा. रोज़ लिखता है क्या आज से मैं अलग प्रैक्टिस में जा रहा हूँ. कुछ तो लिखता है. वेरी प्रैक्टिस बेस्ड. अच्छी चीज़ है ये भी लगती है. आप समर डांस फॉरएवर या फिर कोई भी जैम देखोगे ना, जिसमें पूछते हैं यू विन और लूज, तो वो बोलते नहीं कि आई लूज, वो बोलते हैं आई गो बैक टू प्रैक्टिस. तो वो चीज़ है. तो वो मस्त लगता है मुझे कि यार मुझे ऐसा लगा था कि एक बार वंस यू मेड इट ना, तो आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं होती. फिर आप एन्जॉय करते हो. ऐसा नहीं था. देन आई मेट तनिष्की 3 years बैक, और मैंने उनको बोला कि यार मेरे को मस्त लगता है कि आप बाहर भी गए हो, इतना वो क्रिएट वगैरह भी करते हो, कमाते भी हो, फिर भी आप क्लासेस करते हो. एंड लाइक या इट्स वेरी कॉमन. मतलब करते हैं ये लोग, और ऐसा कुछ अलग नहीं है. बट बढ़िया है. मेरे को ये थोड़ा फ्रेश माइंडसेट हमेशा से रखना है कि आई डोंट नो. जैसे आई हैव रेड समवेयर कि सक्सेस इज यू डू व्हाट यू वांट टू डू. करेक्ट. ठीक है. तो अगर मुझे ऐसी पेंटिंग बनानी थी, लेकिन मैंने ऐसी पेंटिंग नहीं बनाई, मैंने कुछ और बना दिया. सर्कल बना दिया, 2 डॉट बन दिए, स्माइली बना दी, और वो $1 million में सेल हो गई. तो मेरे पास पैसा आ गया, बट आई एम नॉट सक्सेसफुल, क्योंकि जो मैं करना चाहता था वो तो मैंने नहीं किया. मेरे को बस पैसे आ गए. तो इट्स लाइक दैट. आई फील कि जो हम कर रहे हैं वी आर क्वाइट सक्सेसफुल, क्योंकि यही हम करना चाहते थे. अगर मैं 10 साल के प्रणीत को दिखाऊंगा कि यू आर टेकिंग क्लास लाइक दिस, या फिर यू आर वेयरिंग दिस क्लोथ, या लोगों के साथ जाके मुझे लगा भाई दिस इज द फकिंग लाइफ. क्या मज़ा है. सुबह उठ रहा हूँ, मेरे को कोई वैसा भी नहीं कि 9 बजे भागना है. आराम से उठ रहा हूँ, आराम से खुद का करने का टाइम है, खुद के कपड़े पहन सकता हूँ, खुद की लैंग्वेज जैसे बात करने कर सकता हूँ. देयर इज सो मच फ्रीडम. फिर बोलेंगे हाँ पैसा नहीं, अरे ठीक है चिल है. बट वो एक लाइफ तो कितनी अच्छी है. अगर मैं कल मर गया तो आई एम लाइक आई वाज हैप्पी टुडे, आई वाज हैप्पी यस्टरडे. तो वो है. वो भी सुना था मैंने कि माई गोल इज टू जस्ट हैव अ गुड डे. वो भी कि
364 more. तो या कहाँ से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होता नहीं, है? dancers, you were talking about dancers that you are inspired by. I don't, मेरा क्या है कि मैं actually मैं बहुत आजकल डांस फिल्म्स देखने लग गया हूँ बिकॉज आई एम ऑन अ क्रिएटिव आर्क कि मुझे कुछ बनाना है, तो मैं ज़्यादा डांसर्स को पर्सपेक्टिव से नहीं देख रहा हूँ. मैं इसीलिए आपको इंडियन डांसर्स दे रहा हूँ ताकि आप रियलाइज़ करो कि इंडियन ओरिजिन के डांसर्स बाहर हैं जो किल कर रहे हैं. बट मेरा अभी आर्क है कि मैं फिल्म्स थोड़े ज़्यादा, और जिनके लाइक मेरे को नाम भी नहीं पता, बट देयर आर लॉट ऑफ लाइक मूवमेंट फ्रेम्स दैट आई एम लुकिंग एट बिकॉज आई वांट टू क्रिएट लाइक अ स्क्रीन विजुअल नेक्स्ट. तो मैं अभी वो जोन में हूँ. और मैं खुद के जर्नी से बहुत इंस्पिरेशन लेता हूँ जेन्युइनली. तो मैं खुद लाइक आई डोंट नो, अभी ऐसा स्टेज पे मैं बाहर नहीं देख रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मेरे अंदर सब है कहीं पे जो मुझे ढूंढते रहना है. तो वो है या. बहुत सही, बहुत सही. डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी? Should I ask you a controversial one? तो जो रिसेंट नहीं पूछते. नहीं, इन जनरल आई एक क्वेश्चन विद रिगार्ड्स टू द मूवमेंट हब. Just how do you think this has been different for you from any other dance experience, and what do you think you want to offer to through dance? What do you think you want to offer to the world? आई फील यहाँ का स्टूडेंट कल्चर बहुत अच्छा है. एक्चुअली मैंने मुंबई में इतना भी ट्रेनिंग नहीं किया है. मैंने सैम्बो के अंडर था मैं कुछ 1.5-2 साल. बीच में बीडीसी जाता था, मैं लोगों की क्लासेस करता था और नेटवर्क बनाता था बहुत अच्छे से. मुझे बार बार सिमिलर फेसेस देखना बहुत अच्छा लगता है कि मैं इसकी क्लास में गया था, यहाँ पे भी थे, यहाँ पे भी थे, यहाँ पे भी थे. तो वो फील होता है कि हाँ शिट, ये इन लोगों से कुछ बात हो सकती है, फिर अच्छा लगता है ऐसे. तो वो मुझे हब में देखने को मिलता है कि पीपल वही कि वो जो कल्चर है कि इसकी भी क्लास करेंगे, इसकी भी क्लास करेंगे, इसकी. और वो एक अच्छी चीज़ है कि लोग बात बहुत करते हैं. वो बात करने का कल्चर बहुत अच्छा है यहाँ पे. अगेन बाहर आके किसी को, इवन सोनिया, अगर किसी का डांस अच्छा लगे तो सोनिया पूरी तारीफ़ कर देती है उसकी. या कोई वन सिमोन हो, जैसे मेरी ही क्लास की बात करो तो मेरा एक दोस्त मेहुल आया था क्लास में, एंड सब अपना अपना क्लास का एक्सपीरियंस बताया था. सिमोन उसके बीच में बोला कि मेहुल यू आर सो अमेजिंग. तो उसको कितना अच्छा लगा होगा. तो बहुत अच्छा लगता है. अगेन वो कनेक्शन अपने आप बन जाते हैं, वो स्पेस अपने आप पॉजिटिव हो जाती है सब कुछ. तो आई रियली लाइक दैट यहाँ पे. प्लस आई लाइक हाउ वी कीप द माहौल यहाँ पे. तो उससे बहुत अच्छा लगता है. मैंने आपको बोला भी है कि बाहर कैसा भी मूड हो, यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा अच्छा हो जाता है. सो आई फील वेरी पॉजिटिव स्पेस. दिस इज व्हाट आई वांट टू ऑफर. इज आई जेन्युइनली वांट टू क्रिएट अ पीस प्रोडक्शन. यस, मेरे को चाहिए बिकॉज आई फील कि मैं एक्सप्रेसिव हूँ, मैं बहुत वर्ड्स से एक्सप्रेसिव हूँ. आई फील कि मुझे थोड़ा सा मूवमेंट में घुसना है और अब मेरे को बनाना है कुछ मस्त बड़ा सा. एक छोटा एडवाइस दूँ. यस. ये मैं जब फर्स्ट टाइम बना रहा था ना, मेरे को बहुत मेरी फटी थी. बिकॉज आपको बनाना होता तो यू हैव टू मेक इट फॉर एन ऑडियंस. इट हैज़ टू बी अ शो, हैज़ टू बी अ लॉन्ग शो. बट व्हेन यू मेक अ शो फॉर 45 minutes, you won't know where to put what. Always good to be part of a process first. एक्सपीरियंस ले लो एक कोरियोग्राफर से कि वो भी सीख ही रहे होंगे, बट एटलीस्ट आप रिसीविंग एंड पे देख सकते हो कि क्या हो रहा है. जब आप पीस बनाने के उसमें घुसते हो ना, इट्स मच ईजियर व्हेन यू आर क्रिएटिंग टू नो कि अगर कोई सेटबैक्स आए तो उसके साथ डील कैसे करना है, क्या करना है. तो मैं फॉर एग्जाम्पल अभी सब डांसर्स को बोलता हूँ कि मुझे ले लो, मुझे नाचना है, कुछ नहीं करना. मैं मेरा साइड में क्रिएट करते रहूँगा, बट जस्ट बीइंग पार्ट ऑफ समवन एल्सेस प्रोसेस एड्स अ लॉट टू यू. वो आपको टैंक भरते रहता है बिकॉज उनका मूवमेंट अलग है, पर्सपेक्टिव अलग है, थॉट प्रोसेस अलग है. शायद आप अग्री डिसएग्री करो, बट दैट एक्सपीरियंस हेल्प्स यू अ लॉट. बिल्कुल बिल्कुल. या इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू. मजा आया हमारी सुबह थोड़ी 5-10 minutes. बढ़िया. सुबह हम दोनों मतलब मैं तो स्लीपी था लेकिन अभी फीलिंग एनर्जेटिक. नाइस. थैंक यू. आई मीन आई हैव बीन वांटिंग टू शेयर सम थिंग्स एंड आई फील लाइक कि बहुत अच्छा हुआ. आई थिंक I just want people to understand nothing really about my journey, just understand who I am and what I want to offer, because I'm going to be here for a long time. Yeah, let's go. Yes, thank you so much guys for watching this episode. अगर आप
यहाँ तक पूरा एपिसोड देख रहे हैं, मतलब आई एम रियली ग्रेटफुल. प्लीज़ लीव अ कमेंट, प्लीज़ शेयर करो अपने दोस्तों के साथ कि आपको कैसा लगा. टैग अस, फॉलो कुणाल, फॉलो मी, फॉलो द पॉडकास्ट विद प्रणीत, फॉलो मूवमेंट हब, फॉलो शाहान, फॉलो Prishita, follow Pooja, everyone. Yes. Thank you so much, and hope to see you guys personally in class, dancing, in cyphers, on stage, everywhere. See you. Bye bye.